वानियों को लोगों के साथ शेयर कर पाए हैं। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, हम अपने पारिवारिक जीवन में किस तरह सामंजस्य ला सकते हैं, व्हाट इज आवर इमीडिएट इन्वायरमेंट और लार्जर इन्वायरमेंट, उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट क्या है और हम कैसे इसको सपोर्टिव बना सकते हैं। These are some of the questions and impacts every individual, irrespective of their race, religion, geographical locations, social status. These questions must be answered. If you recall all the sessions that have been conducted over last year, 1 year, all the discussions we had, one common solution that came as answer to many of the challenges that we are facing, and that is nothing but the presence of living ideal in our life. Not just the presence of living ideal, but active engagement, our active engagement from our side, so that every aspect of life is aligned in accordance with the wishes of the ideal, the directions and guidance as laid out. And therefore, today's topic, the initiation or Diksha, is so very important. Now, few very important question comes to our mind, especially in this setting. Like, why should I, who is pursuing a career in science or related scientific study, has anything to do with this initiation, concept of initiation, Diksha, religion, living ideal, etc., etc.? Trust me, this is the biggest misunderstanding that we have had for very long. We somehow compartmentalize our affairs, separating science and religion, and that myth is broken. At one point, one of the disciples of Sree Thakur asked a question to him on the same lines, especially in the context of dharma, religion, spirituality against science. And Sree Thakur दादा, you are muted. ऊपर में नहीं कर, अभी वैसे बनाएगा तो बोलो तो sorry, I just got muted or I have been muted for long. You just got muted. Okay, just got muted. So I was saying, one of the disciples asked Sree Thakur on the same line, especially dharma, religion, spirituality against science. And Sree Thakur's response was, isn't dharma, religion, and spirituality trying to do the same? That is to solve the issue that we are facing in our life. Sree Thakur said, and I quote, that science and religion are not opposed to each other. He says that which upholds human existence in dharma, and it is the duty of dharma to overcome ignorance. But whatever progress we make in the field of science, there will always be beyond. And so there will be also this agony for that. And Sree Thakur said, if a man wants to eradicate suffering through the means of scientific instrument, then why should he or she not make use of his own physical body, so full of vitality, the best and finest of all the instruments, which is at his own disposal as the blessing of the Almighty? Remember, Thakur said, no scientific investigation can be said to be perfect which does not take into account the culture of keeping the human biopsychic system healthy, sensitive, and tolerable. And from this perspective, you may very well say that dharma is science. Said, I feel success is inevitable if we give correct direction after thinking and considering pros and cons rightly. Science is science, whatever, whenever it's appropriate, it is, if it is properly implemented, then right kind of result is bound to follow. And that proper implementation, preparing for that, that's where the need for ideal is very, very. I don't want to go very much into that because we have limited time. And at this point, I would like to continue further. I would like to invite Tumfa Ghosh.
I have known Tumpama, for several years. Is a pioneer of one of the top, I would say, pioneer of satsang activity in UK. By profession, she's a teacher in one of the school in London. And I think we have worked in satsang activities. He has been a speaker to many places on satsang activities around the globe. So without any further ado, let me invite Tumpa Ghosh from United Kingdom to continue further. Jai Guru to everyone and Jai Guru Ramda, and thank you for introducing me. My pranam at the lotus feet of Sri Thakur Anukulchandra, and a very warm and hearty welcome to each and everyone present, to all the participants and viewers to this grand celebration. It is an absolute joy to be part of this grand event where everyone, irrespective of where we are, we have come here to celebrate the 1-year completion of professors, scientists, doctorates, researchers, and scholars meet. So today's topic of discussion is initiation, an inevitable and integral part of life. See, the immediate question that arises in our mind is, what does initiation really give us? And how is it important to me, to my life? So in today's world, we all want to live our life happily and peacefully. And in order to fulfill that purpose, knowing what to do and how to do is important. So at first, it is the purpose and then having the knowledge of what to do. So after knowing the purpose and the knowledge comes the action, acting upon what we want to achieve in our life. And herein comes the real challenge. On many occasions, we will find that we know what to do, but as we are driven by our own longing and complexes, our action becomes the manifestation of our own desires, our wants, our cravings, and our wishes. When we fail and simply cannot fulfill what we want, as individuals, we get anxious, worried, frustrated, leading to all sorts of emotional state actions that is not conducive to our living and to our growth. We expect outcomes, but we don't always reflect on our own actions. And this is where Sri Thakur has said, be concentric. But to whom? Thakur continues to say, life becomes exuberant when dissipated attachments converges towards one, the ideal. In the book, The Pursuit of Truth, the only handwritten book by Sri Thakur, he says, as is the ideal in whom you place your faith, so will your nature be formed and your vision too will be like that. So it means our action, our behavior, our words will mold according to whom we place our faith. See, Thakur's movement is often referred to as the man-making. Sorry, there is a noise going on. How to be a good human being. And this is one of the reasons why Thakur has said that know this for certain, you are responsible for the present and future of yourself, your family, your environment, and your country. Thakur particularly emphasizes on the few basic qualities that we should possess in order to be a good human being. And that is self-disciplined, self-governed, self-efficacy, and basically be a responsible citizen. And to start that journey, the person should have a living ideal, attaching with him and practicing his ideology to fulfill him. Life can slowly evolve for good. Now, coming to the aim of designing these sessions for a year, particularly focusing on educationists and scholars, is absolutely unique and of paramount importance. So when we see that education, scientists, and scholars from different walks of life are initiated or have a spiritual guru, they set an example to the society. As students, we always have our favorite teacher. And somewhere in our life journey, we always try to follow them as our role model.
And if they are attached to Sri Sri Thakur, the living ideal, then Thakur's ideology can cascade down the line and spread in the society, making the society a better place to live. And that's exactly what this 1 year sessions with all the participants, with all the viewers, we have been trying to do. And that's why Thakur, in the pursuit of truth, has said, if you be good yourself, thousands of people will be good seeing your example. And with this, I would like to conclude my welcome speech. I'm sure that through this discussion session, we will all enrich ourselves and join hands together to get initiated, if we are not, and actively spread Thakur's ideology for our healthier future across the globe. Jai Guru, Vande Purushottama. Thank you, Tumpama, for very beautifully putting the code. Attachment to the living ideal, being concentric, and the importance of Diksha. Talking about this initiation, you know, as we are celebrating this event today, by the blessing of Pujaniya Avinda, and that blessing was sought around 15th of March, and from that day onwards until today, we have had 450 new people have been initiated, taken holy name, and out of which there are around 120 scholars. So his blessing that is working, and we continue that work. But continuing this program further, I would like to now invite Clark Mayer, who is joining from the beautiful city of Austin in Texas state. I used to live in Houston and quite frequently go to Austin. There are quite a few satsang activities happening there. Clark is a retired engineer from a very renowned semiconductor industry company. And at the same time, in parallel, as a lead of the musical band called Flame in Houston, Austin, Texas. He's spreading love through music. He's known as multi-instrumentalist and plays some instruments like accordion, keyboard, etc. with equal ease. He's also a former band leader for the local community church. Without further ado, let me invite Clark to the forum. Jai Guru to everyone. Thank Jai you. Guru. I am Clark Meyer, as you said, recently retired engineer from the semiconductor industry. My retirement project is solve global warming. So I hope you will help me. I also lead the band. That is a lot of fun and a lot of work, and I spread love through music. And I'm privileged to be here with you and welcome you with so many scholars around the world. So I welcome you to this grand celebration of 1 year completion of professors, scientists, researchers, doctorates, PhD scholars meeting based on the ideology of Sri Sri Thakur Anukulchandra. With the blessings of Reverend Abhi Dada, and this event is started last April, a year ago, organized by Uttar Pradesh and Uttarakhand, with combined online satsang on the first Sunday of every month. This meeting is specially designed to address the various social issues discussed among the panelists, who are reputed scholars from universities and other institutions from around the world. So, a heartiest welcome to everyone.
Dada, you are muted. Okay, sorry. I have unmuted myself. So can you hear me now? Yes, we can. Yeah. Yes, it's quite clear now. Yeah. So- Go ahead. Yeah. So I'd like to thank you, Clark Mayer, for joining and welcoming the participant for this program. We have another speaker who will be introduced. I would like to introduce is John Griff. John Griff is a pioneer of leading technology. He has architected learning and training platforms for enterprises in VMware and Google technology that enable millions of people to learn and share their knowledge with others. He is a true innovator, an entrepreneur, and also works as a senior manager in Cognizant. At heart, he is a perennial speaker and learner. Without further ado, let me bring John Griff here. John, can you hear Good me? morning. I can Good hear morning. you. Can you hear me? Yeah. Thank you. Thanks for the opportunity to join your event. I think I'm only meant to speak for a few minutes, so I'll just give you a little background on myself. And I think a personal experience with the topic. So the personal guide can share from one's own. Sorry. By the way, there's a lot of background noise. Can we please mute others? Okay, so a personal guide can share from one's own experience, motivate, inspire, boost, or raise the level of confidence, clarify the situation and goals, suggest powerful tools. In short, guides can be a critical resource at a range of moments of need. While this can be visible in any field or profession, this is equally true in the pursuit of life. To offer an anecdote, I want to just quickly reference an experience that I had early in my life, where I experienced a pattern of growth through a mentor. I was a youth in California playing the most popular youth sport, which is soccer in America, football in the rest of the world. Over a 2-year period under the guidance of a coach, I grew from being a top 40 player in the program that I grew up in to being a top 10 player in that same pool. This is a program where virtually every child in the town plays soccer. So this is a pool of thousands of players. And when I refer to the top 40, these are the players that are selected to represent the city as we travel across the state and the country. Notably, this journey started slowly with no special relationship between my coach and myself. He offered me the same guidance that he offered any of my teammates. As I recognized the particular talents that he had as a guide and asked him more questions about ways I might apply his lessons, only then did his guidance get personalized to me. Later, over the course of this 2-year period, I hit a development plateau. And only then I expressed dissatisfaction with my development and a willingness to change anything in order to develop further. And this is when the mentoring took an especially specific, demanding, and effective tact. The result was both personal and team-wide. The result was that I played a leading role on a top team in California at my age group. I took over many talented players in that pool and enjoyed the team success as we won 90% of our games over a 12-month period. Sorry, was that directed to me? No, actually there was a disturbance. Somebody joined. I will. Okay, sorry. So I played on what was the number one ranked team in the most popular sport in the state of California as a young person. I've taken lessons from that experience into my adult life, and I've curated relationships with guides at each stage. As it was mentioned, what I do professionally is I
as they build learning products applied in the enterprise space. And I've taken the lessons from that personal experience, which was really a relationship between myself and my mentor. It required very specific things of myself, and particular insights and support from the coach in this particular case. Now I've turned that into a product orientation as I've been developing products that are designed to support people at their 5 moments of need across their employment journey. Today in this program, many scholars would share their experience in the panel discussion. I think you want me to mention who's on the panel. So we have Professor Chaudhry from the Department of Physics at IT Dhanbad, Professor Situla from the Department of International Environment and Development Studies at NMBU Norway, Professor Lemay, Biochemistry from Hanover University in Germany, and Dr. Gupta from the Department of English at RG University. Thanks for your time. Thanks for the invitation. I'd like to hand this back over to Ram to take the program forward. Thank you, John, for very beautifully sharing your experience, your personal experience. That is very, very critical. It's not about just having a guru or a coach, but how much we are prepared to surrender and accept his guidance, implement. That is very, very important if you really want to success. And thank you very much for sharing that example. And now I just want to move further, keeping the time. I would now like to invite Vidhi Anvesha group from Kolkata. They are a group of professors, scientists, researchers, and PhD scholars from University of Kolkata and Jadavpur University. They will be doing evening prayer in the group. Jai Guru. Jai Guru. Can I start? Yes, please go ahead. Okay. And I would also जगत जीव भर मन बिरे सारो खाने ऐने योगी सब मन गाने आग जला मेरा सभी राधा स्वामी नाम का मैं देव जनाए साधु बिना संत भावे शब्द राधा स्वामी नाम महिमा सुनाए राग जगाय हर बंधु भाई साधु संत मन सार भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संगन आए कर के में बलो कैसे दिया घर जाई रसन रस निकलो गए मन निरदाई सूरज जड़े आकाश में
हरि शब्द विलासा राम नाम निरखत जले कवि जगरवासा यो आशा मेरे मन बसे हरे चित्त उदासा विनो सुनो विरपा करो निज चरण निवासा पुण्य में कोई समर प्रेम धार वर कागर अमृत भाना दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी सुबर करो निराग स्वामी तुम समरथ नहीं प्रेम धार वर सागर अमृत भाना दीन दयाल दया कर निराग स्वामी सुकर निराग स्वामी सविनय करुणा साधु संग परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ गुरु आदि अनादि राधा स्वामी परम विभु मैं तुम सहाय भाई बार बार बलवान प्रेम फले गुरुदेव सब विधि अवगुण तो मेरी लाज राधा स्वामी समरा तुमने दया करो मेरे सारिया देव प्रेम विदान सुख सुख सब दया करो मेरे सारिया देव प्रेम विदान सुख सुख कारो कारो करो सविनय करो साधु संग परम गुरु दाता साधु संग परम विरागा गुरुदेव
जगन्नाथ सद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा गुरुवे नमः आदिनाविश्य गुरु परम दैवतम गुरु परम नास्ति गुरुवे आनंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गंगाधीतं वक्नसदृशं दर्शनसादिलक्षणं एकं दत्तमलङ्गलं सर्वदीयवस्तुतं भगवतीतं निर्मलितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि Jai Guru. And now I'd like to invite Professor S.K. Jahiruddin, Department of Physics, Sister Nivedita Government College, to read from Satyanusaran in Bangla. After this, Nam Dhyan. Jai. After this Nam Dhyan. Joy Guru. Am I audible, sir? Joy Guru. Am I audible, sir? Yes. Okay. পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহস্যে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। You are muted. Sorry. তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করো আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরো। যদি তোমার আদর্শের কথা বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, তার চিন্তায় আনন্দ, তার হুকুম পেলে আনন্দ, তার আদর অনাদরেও আনন্দ হয়, তার নামে হৃদয় উথলে ওঠে, আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমার জন্য আর ভেবো না। জয় গুরু। প্রণাম সবাইকে। जय गुरु। हिंदी में सत्यानुसरण पढ़ने के लिए मैं डॉक्टर श्रेयांक गुप्ता, रिसर्च साइंटिस्ट फ्रॉम डार्क विजन टेक्नोलॉजी कनाडा, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जय गुरु दादा। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, उनकी चिंता करने में आनंद, उनका हुक्म पाने पर आनंद, उनके आदर में आनंद, अनादर में भी आनंद हो, उनके नाम से हृदय उछल पड़े, मैं निश्चित कहता हूँ अपने उन्नय के लिए तुम और नहीं सोचो। सदगुरु के शरणाप्रत हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जय गुरु। To speak Satyanusaran, read from Satyanusaran in English, I would now like to invite Dr. Madhav Hawaldar, veterinarian, agriculturist, from Dhaka, Bangladesh. Dr. Madhav Hawaldar. Can you unmute yourself? Dr. Madhav, you're muted. डॉक्टर माधव दा, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
Now I would like to invite Dr. Devarita Ghosh, Research Associate from Netherlands, to read from Nari Niti in Bangla. Jai Guru, reading Bangla Nari Niti, Nari Niti Bangla থেকে পাঠ করছি। পাপ বলিয়া জানিও, যাহা তোমাকে জীবন, যশ ও বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়া হীন ও দুর্বলতাকে লইয়া মরণ পথের করিয়া। বাণী সংখ্যা 102। জয় গুরু। हिंदी में नारी नीति पाठ करने के लिए मैं डॉक्टर अंकिता दास, पोस्ट डॉक स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, वर्ना सैम्पल, यूएसए। डॉक्टर अंकिता दास। नमस्कार। उसे ही पाप समझो जो तुम्हें जीवन, यश और वृद्धि से वंचित करके अज्ञता, हीनता और दुर्बलता को लेकर मृत्यु पथ का यात्री बना दे। नमस्कार। जय गुरु। Now to read from Nari Niti in English, I would like to invite Dr. Sree Sangeeta Fuhan from University of Sussex, United Kingdom. Joy Guru everyone. Reading Nari Niti, Women's Code, English version. Sin. Know that a sin which, depriving you of life, glory, and growth, makes you a traveler along with ignorance, inferiority, and weakness on the road to death. I repeat it. Know that a sin which, depriving you of life, glory, and growth, makes you a traveler along with ignorance, inferiority, and weakness on the road to death. Jai Guru. The last book that we are going to read from is from the book The Message, and for that I would like to invite Dr. Jyoti Datta, who is a postdoc associate from Rutgers University, New Jersey, United States. Dr. Jyoti Datta. Jai Guru. Jai. The Message, Volume 1, Chapter 1, Verse number 1. The Reveal, the booming commotion of existence that rolls in the bosom of the beyond, evolves into a thrilling rhyme and upheaves into a shooting becoming of the being, with echoes that float with an embodiment of energy that is Logos, the word, the beginning. Vande Purushottam. Vande Purushottam. To take this program further, I would like to invite Dr. Jayanto Datta, the visiting scientist, theoretical astrophysicist and cosmology division, HRI, Department of Atomic Energy, Government of India, Prayagraj, Allahabad. He's a PhD and scholar in Germany, Italy, and Portugal, and has visited Switzerland, Australia, Japan, and other countries to attend conference as an invited speaker. He's also a national fellow, Indian Institute of Science and Education Research, IISER, Mohali. So without further ado, let me invite Dr. Jayanto Datta to take this program further from this point onward. Jai Guru Jayanto Datta. Jai Guru. পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের চরণে আমার প্রণাম। सत्संग पे उपस्थित श्रद्धेय पंचधारी कर्मी, गुरु भाई, माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। So today we are here to celebrate the 1 year completion of Professor, Scientist and Research Scholars Meet. We are really fortunate today. We have many dignitaries within us.
I am thankful to Sri Ramkinkar Thakur, SPR, Petroleum Engineering and Oil and Gas Operation Management, Norway. Srimati Tumpa Ghoshma, MA from Calcutta University and now the teacher in Government School, London. Mr. Clark Mayer, retired engineer, semiconductor company, lead of a musical band P Flame, Austin from Texas, Austin, Texas. And we have Mr. John Grubbs, pioneer of learning technologies, VMware and Google. He is also a senior management in Cognizant USA. So on behalf of Uttar Pradesh and Uttarakhand combined e-satsang, we have these 4 dignitaries who have welcomed all of us to celebrate this grand event of 1 year completion of Professor, Scientist and Research Scholars Meet. After that, we have a prayer from Vidhi Annesha Group, Kolkata. Vidhi Annesha Group consists of professors, scientists, and many researchers, PhD scholars from the University of Calcutta and Jadavpur University. By the blessing of Bartaman Acharya Dev, they have formed this group Vidhi Annesha, where I know many people there, Mr. Chandan, Mr. Ved Prakash, and many other brilliant and talented research scholars. They form the group Vidhi Annesha, who has performed a prayer, who has offered prayer with the gong blowing and Shankhodhani and Uludhani. So I thank all of you and I pray to the lotus feet of Sri Thakur for the well-being of everyone. After that, we have recitation from the Holy Book. I am very happy to convey my message that we have Professor S.K. Jahiruddin Da. He is very friend of us and very nice Dada, Professor S.K. Jahiruddin Da from the Department of Physics from Sister Nivedita College, Alipur, India. So he has read the Bengali version of the Satyanusaran. Then we have Dr. Shreyang Gupta, research scientist from Canada. He has read Satyanusaran Hindi, and I think due to some technical reason, Dr. Madhav Hauladar Da, a very reputed veterinarian and agriculturalist from Dhaka, Bangladesh, he could not read the English version, maybe due to some technical issues. Then the Nariniti has been recited by Dr. Devnita Ghosh, research associate from Netherlands. Hindi by Dr. Ankita Das. She is a postdoctoral scholar. She did her PhD from TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, then postdoc from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. She is a very talented researcher. And we English by Dr. Sree Sangita Puhan, Satsang volunteer and speaker, researcher from the University of Sussex, UK. The message has been read by Dr. Orkojit Datta, postdoc associate from Rutgers University, New Jersey, USA. I pray to the lotus feet of Sri Thakur for the well-being everyone. This Narin Niti and Satyanusaran. So we have the dignitaries and the research scholars from all over the world. So now to proceed further, we now start the Sangitanjali, and for the Sangitanjali, I invite Miss Sneha Das. हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय Sneha Das Ma, regular artist in the Doordarshan and Air. She has also done M.Tech in biotechnology from Kolkata. माँ दूरदर्शन का भी सिंगर है और पूजनीय अविंद के आशीर्वाद से माँ हमारा जो बड़ो बौरानी माँ बड़ो बौदी का को गाना भी सुनाते हैं। मैं माँ को अनुरोध करता हूँ, माँ आप इस प्रोग्राम पे एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। Jai Guru, am I audible? Yes, you are audible. Please start. Jai Guru. Jai Guru. My Satkoti Pranam to the lotus feet of Thakur ji and Jai Guru to everyone. I am extremely glad to be here on this auspicious day. Jai Guru.
प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम परमानंद प्रिय भव भय हारे, सकल दुख भार वेदन हारे। परमानंद प्रिय भव भय हारे, विश्वनाथ स्वामी वरद विराट, विश्वनाथ स्वामी वरद विराट, चेतन वर्धन प्रभु जीवन धार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम सुभद पालक अभयनायक, पृथ्वीनायक श्रेय विधायक, सुभद पालक अभयनायक। सुभद पालक अभयनायक, पृथ्वीनायक श्रेय विधायक, आलोकोज्ज्वल पावक पुरुष, आलोकोज्ज्वल पावक पुरुष, पुरुषोत्तम प्रभु जीवदाता, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल।
अमृत आधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल परम करुणाधन सत्य निरंजन परम करुणाधन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी मेरे परम जयतु जयतु नमः देव विशाल जयतु जयतु नमः नाथ कृपाल जयतु जयतु नमः परम दयाल। Excellent, ma. Excellent. I really don't have any words to explain the beauty of this song. It was just a fantastic, ma. It was a very first class and finest piece of art which you have just presented here. बहुत ही सुंदर आपका ठाकुर जी के प्रति भक्ति, आपका सुरीला कंठस्वर से आपने इतना सुंदर से ठाकुर जी के चरण में एक भजन प्रस्तुत किया। हम सभी लोग बहुत ही मुग्ध हुए। मैं ठाकुर जी के चरण में आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही आई मस्ट से माँ ने आज पूरा दिन ट्रैवल किया था और माँ ने फिर भी बोला मैं दादा ट्रैवल करके मैं कलकत्ता जल्दी पहुंच जाऊंगा और पहुंच के मैं ऐसे ही चेष्टा करूंगा जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से पहले हमारा जो लिमिट था वो कैपेसिटी लिमिट था वो 300 था, लेकिन अभी जो लिमिट 1000 तक हो गया। बहुत सारे गुरु भाई माँ लोग जब उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, शायद दादा माँ लोग ने यूट्यूब में शिफ्ट कर गया। मैं अभी देख रहा हूँ यूट्यूब में देयर आर मोर देन 100 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द यूट्यूब। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं सभी को अनुरोध करता हूँ आप लोग जूम में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा कैपेसिटी 300 से 1000 हो गया। और एक अनुरोध है सभी से, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोग्राम जो पूजनीय अविंद के आशीर्वाद से हम लोग लास्ट 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और टुडे is the grand celebration of 1 year completion of this professor, scientists and research scholars meet from all over the world। जो इस प्रोग्राम को स्मूथ करने के लिए आप लोग प्लीज कोई नॉइज मत कीजिए। जो लोग ओनली पार्टिसिपेंट है वो दादा माँ लोग ही सिर्फ हम लोग अनम्यूट करके हम लोग प्रेजेंटेशन हमारा जो गाना भजन कीर्तन हम लोग करेंगे। बाकी लोग प्लीज, और क्योंकि ये वीडियो है आप लोग प्लीज थोड़ा सा अच्छा सा ड्रेस पहन के वीडियो के सामने बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक अनुरोध है जो मैं अभी देख रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द ऑडियंस टू प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग वीडियो आप अपना वीडियो स्विच ऑन करिए, तो फिर ये ऐसा लगेगा हम लोग सभी सामने अपने सामने बैठे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द ऑडियंस टू प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। हाँ, तो हम लोग हम सभी को देख सकते हैं। So next, we are really fortunate to have Mr. Clark Mayer, retired engineer and semiconductor company, lead of a musical band P-Flame. Clark Mayer, he is also the monetary instrumentalist। हमारा जो श्रद्धेय गौरी शंकर दा है यूएसए से, दादा के माध्यम से हम लोग मिस्टर क्लार्क मेयर को पहुंच सके और दादा ने एग्री भी किया। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू विद इन अस। सो आई इनवाइट यू टू प्रेजेंट ए सॉन्ग
which you do. So whatever you like. I heard that you also presented song in the church. So please, Dada, please sing a song for our Thakurji and for all of us. Joy Guru. Joy Guru, thank you. So this song is very popular in my church. I have led the band with this, and they like to sing it. And it is about spreading kindness. And the title is Try a Little Kindness. It is a Western folk song genre. If you see your brother standing by the road with a heavy load from the seeds he sowed, and if you see your sister falling by the way, just stop and say, you're going the wrong way. You've got to try a little kindness, show a little kindness, just shine your light for everyone to see. And if you'll try a little kindness, you'll overlook the blindness of narrow-minded people on their narrow-minded streets. Don't walk around the down and out. Lend a helping hand instead of doubt. And the kindness that you'll show every day will help someone along their way. You've got to try a little kindness, show a little kindness, just shine your light for everyone to see. And if you try a little kindness, you'll overlook the blindness of narrow-minded people on their narrow-minded streets. All right, that is my song for you today with kindness. Excellent, excellent. Yes, really, it's a very meaningful song, and we are happy that you have come forward and sang a song for our Thakurji, for satsang, and for all the audience. I am sure all the audience has really enjoyed this song. It's a very meaningful song and excellent performance by you. I pray to the lotus feet of Sri Thakur for the well-being of you and your family. Joy Guru Dada. Joy Guru, thank you. Joy Guru, Joy Guru, Joy Guru. Please stay with us. We will hear from you at the end of the satsang. We will hear from you. Please stay with us. This is our request to you. Thanks. Thank you. So to go forward, we have श्रद्धेय श्री अमिताभ सामंत राय हमारे बीच। श्रद्धेय अमिताभ सामंत राय, जिसको हम लोग बापी भाई बोल के जानते हैं। बापी भाई जो उड़ीसा में बहुत ही फेमस है और पूरा इंडिया पे भी सीसी बर्दा ने बापी भाई का जो एक सभी को लेके एक कीर्तन समाज है, इसको बोलते ध्रुति उच्चला कीर्तन समाज फ्रॉम उड़ीसा। मैं बापी भाई को अनुरोध करता हूँ, दादा आप एक कीर्तन प्रस्तुत कीजिए सीसी ठाकुर जी के चरण में। जय गुरु। बापी भाई, Bapi Bhai just called me that he was unable to join. Bapi Bhai is here. May I request Rashmi Ranjanda to please call Bapi Bhai? He's there, Dada. He is there. Okay. He unmuted actually. Bapi Bhai, आप unmute कीजिए. Make him co-host, then only he can unmute. So we have not make him co-host. Yeah, now he can. Yes. Okay. Joy Guru. Okay. Joy Guru, Bapi Bhai. Joy Guru. आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित इस प्रयागराज के सत्संग विहार के जोड़े हुए सभी मेरे पूज्य ऋतिक जगत जो सभी कर्मी भाइयों, सभी दादा और माँ को मेरे प्रति भरा राव जय गुरु। विशेष भाव से इस सत्संग पहले पूज्य राम ठाकुर जो उसको परिचालन करते हुए आप जिस इस कार्यक्रम को पूज्य जयंत से कंडक्ट कर रहे हैं, और विशेष भाव से इस सत्संग को आह्वान करते हुए मेरे हृदय रश्मिदा आप सबके
मंगल के लिए उसे मंगल चरण ठाकुर के चरण में प्रार्थना जनाते हूँ। और क्या गाऊं, क्या आप लोगों को भी सुनाऊं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिन्हें अरविंदा के जो आह्वान है, इस आह्वान को लेकर आपके इतना बड़ा प्रोग्राम। मुझे जयंत से मेरा बातचीत हो रहा था, वो बोल रहे थे कि जिन्हें अरविंदा ने उसको एक सुदीक्षा करने के लिए भी दिया है आदेश। तो इतने बड़े अवसर में क्या गाँव भी हो, वही मेरे को मिल रहा है। ये जो कीर्तन में करने जा रहा हूँ, मैं कीर्तन से दो बढ़िया ही कीर्तन है। आचार्य श्री दादा का बहुत बहुत प्यारा कीर्तन है। और ये जो कीर्तन है, कीर्तन एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव। तो मैं सबको मेरे तरफ से इतना ही गुजारिश करता हूँ, आप सब इस कीर्तन में जितने भी सारे ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी हाथ देकर ऊपर नाचते रहे और मेरे साथ ताली करेंगे तो खूब अच्छा लगेगा। क्योंकि कीर्तन आचार्य सामने में जितने बार भी गाने की कोशिश किया, उतनी बार आचार्य दादा ने बहुत बार उसे मैं वो आप लोगों के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो इतना खुशी होते हैं कीर्तन को लेकर। तो ये कीर्तन में आप सब लोगों के सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे, अह प्रेममय रूपे दिव्याविर्भाव हे की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव। हरि बोल। पतित पावन नर नारायण मनरे पतित पावन नर नारायण, पतित पावन नर नारायण देवमय रूपे दिव्याविर्भाव, देवमय रूपे दिव्याविर्भाव हे की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव। हे की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीलाभिनव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे राधे। নয়নরে কহিতা উঠিলে মিলন আকুল আনন্দ সুরে, এরি নয়নরে কহিতা উঠিলে মিলন আকুল আনন্দ সুরে, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন প্রভু হে प्रभु है प्रभु
ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, বৃন্দাবনে বন্দী রাধারে ডাকিব, বৃন্দাবনে বন্দী রাধারে ডাকিব। কি আনন্দ পরম আনন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব। কি আনন্দ পরম আনন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব। হে দয়াল, হে ঠাকুর, তুমি আমাকে রক্ষা করো প্রভু, তুমি আমাকে রক্ষা করো। আমি ধরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি, বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি। ধরুছি অমৃত নাম প্রেম বারি, বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি। তনু মন প্রাণ ভবতি হরণ, তনু মন প্রাণ ভবতি হরণ, তনু মন প্রাণ ভবতি হরণ, তনু মন প্রাণ ভবতি হরণ। প্রভু হে, প্রভু হে, হরিবল হরিবল। আমি গাওরে দয়াল দয়ালু কলি, ঘরে দোলা দূরে দাও চালি। গাওরে দয়াল দয়ালু কলি, ঘরে দোলা দূরে দাও চালি। পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, বিশ্ব পিতারে ডাক প্রাণ ভরে। মনরে আহা মনরে পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, বিশ্ব পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, বিশ্ব পিতারে ডাক প্রাণ ভরে। তীর ভরে ধর, তীর ভয় হের, তীর ভরে ধর, তীর ভয় হের। কি আনন্দ পরম আনন্দ লীলাভিনব। কি আনন্দ পরম আনন্দ পুরুষোত্তম লীলাভিনব। পতিত পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ। হে মময় রূপে নিজ আবির্ভাব, হে মময় রূপে নিজ আবির্ভাব।
प्रभु मुझे तुम्हें तोड़ो तो आश्रय लो प्रभु तुम चंदा तोरे तुम चंदा तोरे ये दयालो ए ठाकुरा चंदा ठाकुर मुझे तुम्हें चरण स्थल स्थान दियो प्रभु मुझे तुम्हें चरण स्थल स्थान दियो प्रभु मुझे तुम्हें चरण स्थल स्थान दियो प्रभु जय गुरु दादा सबाई को जय गुरु बबीदा जय गुरु आप जब परिवेश का ही एक जो माधुर्य आपने इतना सुंदर करके ठाकुर जी के चरण में जो कीर्तन परिवेशन किया, बहुत दिनों से हमारा ख्वाहिश था आपका कीर्तन सुने, आपको ये जो प्लेटफॉर्म में प्रोफेसर साइंटिस्ट रिसर्च एंड पीएचडी स्कॉलर मीट में आप आज हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं ठाकुर जी के चरण में आपके और आपके पूरे टीम के लिए, पूरे फैमिली के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा जय गुरु, बहुत सुंदर दादा, जय गुरु जय गुरु। आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम हम लोग पूजनीय अविंद दादा को 14 मार्च निवेदन किए थे श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा के माध्यम से, ये दादा हमारा 3 अप्रैल हमारा प्रोफेसर साइंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर का 1 साल पूर्ण होने वाला है, तो वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन ए ग्रैंड मैनर। तो पूजनीय अविंद दादा बहुत खुश हुए। हम लोग दादा को, पूजनीय अविंद दादा को बोले थे अगर आपका उपस्थिति, आपका मैसेज, हाँ ऐसा कुछ भी अगर आप उपस्थित रह पाए, तो पूजनीय अविंद दादा जो अभी बहुत ही बिजी है क्योंकि दीक्षा पत्र का करेक्शन के काम के लिए बहुत बिजी है, तो पूजनीय अविंद दादा ऐसे ही लाइटली हमारा जो श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा को बोले, प्रीति कुमार गांगुली दा का जो निक नेम है बुरोदा, बोले बुरोदा को बोलो, बुरोदा जो मांगेगा वही दूंगा, ठीक है ना, मेरे को 8 करोड़ रुपया देने के लिए बोलो। तो ऐसे ही एक लाइट इसमें बोले। तो हम लोग जब बोले अगर हमारा ये प्रोग्राम को कुछ स्पेशल नामकरण होगा, तो उस टाइम पे पूजनीय अविंद दादा बोले हमारा तो एक नामकरण है ही, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आईडी पे हम लोग जो प्रोफेसर साइंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी स्कॉलर्स मीट जो कर रहे, तो हमारा जो नेक्स्ट निवेदन था
what as the impact of this professor meet, we are going to gift him 100 of research scholars, 100 of scholars from all over the world. हम लोग जब उनको ये निवेदन किए थे तो पूजनीय अरविंद दादा हम लोगों को बोले, आप लोग जो डिसाइड किए हैं 100 स्कॉलर को गिफ्ट करने के लिए, ये आप लोग करेंगे ही। ऐसे আপনারা যেটা ডিসাইড করেছেন সেটা আপনারা করবেনই। whatever you have decided you must do it। so ये निवेदन के बाद पूजनीय अरविंद दादा बहुत खुश होके ये जो बोले 100 स्कॉलर को दीक्षा देने के लिए, उसके बाद से 14 मार्च से लेके आज तक हम लोग ये जो मैसेज पूरा वर्ल्ड में जितने सारे ग्रुप है, हर प्रोफेसर को, सभी को, जो गुरु भाई माँ छोटे छोटे भाई बहन सभी को हम लोग ये मैसेज दिए थे। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, सब गुरु भाई माँ छोटे बड़े सभी लोग इतना मिल के गाँव गाँव में जाके इंस्टीट्यूट में एकदम दिन रात एक करके सभी लोग जो जोश से सभी को कन्विंस करके, मतलब आज मैं जब हमारा जो सत्संग कम्युनिटी सेंटर है, सुबह हम लोग निवेदन किए थे सत्संग कम्युनिटी के सेंटर के माध्यम से, जो पूजनीय अरविंद दादा को आप प्लीज ये मैसेज कन्वे कर दीजिए। आज मोर देन 450 स्टिल गोइंग ऑन, 450 लोगों का दीक्षा हुआ है, 450 मोर देन 450 एंड स्टिल गोइंग ऑन। अभी अभी रश्मिदा भी और धनबाद से और एक दीक्षा हुआ है उनका, तो ऐसा और भी मैसेज आ रहा है। सो आउट ऑफ 450 120 आर द स्कॉलर्स। पूजनीय अरविंद दादा एक को हम लोग सोचे थे 100 स्कॉलर उपहार देंगे, ये अभी 100 से 120 हो गया। हमारा श्रद्धेय प्रयागराज से शिवेश दा एक बहुत अच्छा बात बोले थे, हम लोग पूजनीय अरविंद दादा को एक माला गिफ्ट करेंगे जिसमें हर फुल स्कॉलर हो। नाउ वी हैव 120 स्कॉलर इन लास्ट 2 वीक्स। हमारा धानबाद से, मैं सभी का नाम मैं भूल जाऊंगा, आईआईटी धानबाद से, हर आईआईटी से, एनआईटी से, यूनिवर्सिटी से, फिर गांव गांव में जाके, ऊंचाहार गांव में जाके, फिर जज कॉलोनी, बहुत सारे जितने सारे ऑफलाइन ऑनलाइन सत्संग में हम लोग सभी लोग दिन रात रात करके हम करके टोटल 450 के ऊपर दीक्षा हुआ है, जिसमें 120 आर द स्कॉलर्स। They are so among the scholars there are PhD students, professors, scientists, then BTech, MTech who are pursuing their MSc or the higher education, business administration, all are there in the scholar। So हम लोग जो पूजनीय अरविंद दादा को निवेदन किए थे, तो पूजनीय अरविंद दादा अभी बहुत ही बिजी है, शायद कल तक उनका जो हम लोग जब निवेदन किए थे तब वो दादा बोले, पूजनीय अरविंद दादा ये बात सुन के ही तो बहुत खुश हो जाएंगे, जो आप लोग इतने सारा लास्ट 14 दिनों में 450 के ऊपर दीक्षा हुआ, ये तो सुन के ही वो बहुत खुश हो जाएंगे, और उसमें 120 स्कॉलर भी है। तो हमारा मैसेज शायद कल तक पूजनीय अरविंद दादा हम लोग को कुछ बता देंगे कुछ, तो मैं आप सभी को मैं सोचा ये दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई शुड कन्वे दिस मैसेज टू यू। सो नाउ the main attraction of this professor meet, which is the panel discussion, which we are conducting from last 1 year, once in a month. So today on the special celebration, because we conveyed the message around for the diksha, so our panel discussion, the topic is initiation or diksha, an inevitable and integral part of life. Why diksha or initiation is an inevitable and integral part of life? To address this issue, we have 4 professors among us. Professor R.B. Choudhury, Sahopratritik from the Department of Physics, Indian Institute of Technology, Dhanbad। Professor R.B. Choudhury पूजनीय अरविंद दादा का फिजिक्स टीचर भी थे। हाँ, हम सब लोग बहुत मतलब वी आर फॉर्चुनेट दैट हमारे बीच प्रोफेसर आरबी चौधरी तो उपस्थित थे, जो पूजनीय अरविंद दादा को फिजिक्स पढ़ाए थे 2 साल। हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर विशाल के सिताउला फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज, NMBU, Norway। दादा by birth from Nepal, but Dada is staying in the Norway, Oslo from last 32 years, if I am not wrong। हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर वैदेही लिमायमा। She is a biochemistry from the University of Mumbai, and she was there in the Europe for more than 20 years। पूज्यपाद दादा के पास से माँ का इनिशिएशन मिला था। माँ ने हैनोवर यूनिवर्सिटी में भी एज ए
scientist from the Germany, and we have Dr. Dhriti Sundar Gupta, SPR Sahapratirik, Assistant Professor from the Department of English, Rajiv Gandhi University, Andhra Pradesh. So with this panelist, I invite all of you to discuss these issues. So we have 4 questions for you. For the first question, I invite Professor Rashmi Ranjan Da from IIT Dhanbad to ask a question for our panelist. Joy Guru, Rashmi Da. जय गुरु। इस पवित्र लग्न में जोगोजुक्त सारे एमिनेंट गुरु भाई माँ सबको मेरा आदंतरिक राहपति जरूर निवेदन करता हूँ। So the first question goes like this: why it is important to get initiated at an early age? ऐसा क्यों है कि हम लोग जीवन का एक प्राक स्टेज में जैसे बिलीव किया जाता है कि 12 साल होते ही हम लोगों को दीक्षा कर देना चाहिए बच्चों को। They must be initiated with the holy name at an early age of life. Approximately 11 साल कंप्लीट होके जब 12 साल स्टार्ट होगा, then it is believed to be get them initiated. So why is it so that it is important to get initiated people at an early stage? This question goes to Vishalda and Vaidehima. Jaguru, will you please answer? आप लोगों से एक ही निवेदन है, ड्यू टू टाइम लिमिट प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर आंसर विद इन 4 मिनट। जय गुरु। थैंक्स रश्मिदा। Okay, shall I start now? Yes, sir. Vishalda, yes, please. Yes. Thank you very much for this invitation, and this is really a grand celebration. I see that almost 450 people, and I thank you very much for organizing for this great honor and pleasure. The question is why it is important to initiate in the early stage. So my take on, as a professor, as a scientist, my take on is that we have to look at very many research and their findings around the world on what happens in the early stage when it comes to both attention, cognition, and so on and so forth. So number of studies have showed that at the early stage, children will have a better retention of the information they receive. Then the later stage where there is a lot of conditioning goes on. And also in the early stage, there is a inquisitiveness, to ask. You see how children are asking question and question and question, that kind of asking question with a wonder and also attitude of learning. And also in the early stage, they would like to have a better social cognition, so to say. So, and you can go on and go on. From the neuroscientific perspective, something called brain priorities highway. In the early stage, the brain plasticity or neuroplasticity is much easier than the later stage. And therefore, what we are really trying is that diksha here means how to give that inner insight so that they can see the reality the right way. And for that, the early stage is much favorable because that is the best opportunity to do intervention really for a man-making kind of intervention that we need in society. You can see today that how many children lives in a very dysregulated life in Europe. I am living, in fact, in this country for last 34 years. But I know that I've been also teaching many students here what kind of worldview they live and what kind of life they lead to afterward. So many disorienting dilemmas that takes place here. If you look at the suicidal tendency, suicidal rate of Scandinavia, it is very high. It's simply because in the early stage, that roadmap, that kind of insight, that kind of creativity was not given, and they try out themselves, and therefore somehow they fall into a very many different kind of disorienting dilemmas. And therefore, for all this reason,
life in our Eastern wisdom tradition is not just about the success and achievement. It is about the fulfillment. For that, from the very beginning, children need to build that, the understanding of self-worth, that you have an enormous human potential. You are that total, and you can just, you are able to unleash that one. Also, from the very early stage, it's very important to teach about how to build their emotional capital. For teaching financial capital, all the universities are there and many things are there. But how to cultivate that emotional capital in children? We need Diksha, that kind of spiritual initiation. And I can go on and go on, but I was very overwhelmed by the song I was listening from our wife from Odisha. And I must say that I studied almost 5 years in Odisha University of Agriculture and Technology, and I was really overwhelmed, and other sisters and other brother also singing quite well. भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो दीक्षा is a Sanskrit word which means, simply means that di means giving and icha means that inner insight. अंदर की जो संसार, अंदर की जो अपनी क्षमता है, उसको उजागर करने के लिए जिंदगी में बहुत चीज आगे जानी है। तो ये जो मन चारों तरफ चलता है, मन का जो उसी तरह का हमारा मन होता है कि चारों बहिर्मुखी जो चित्त वृत्ति है, उसको रेगुलेट करने के लिए थोड़ा पहले ही अगर आपने बच्चों को दीक्षा दिया तो वो रिटेंशन उनका बढ़ जाता है, वो उनका जो सोशलाइजेशन भी बढ़ जाता है, और ब्रेन की जो प्रायोरिटी हाईवे जिसको कहते हैं, उसके वजह से वो सही मार्ग में लगता है। तो आजकल दुनिया में ये बिगड़े हुए बच्चों का बहुत बड़ा समस्या हुआ है। इसलिए हम लोग को जो आध्यात्मिक जीवन के तरफ शिक्षा इनफ नहीं है, दीक्षा भी देना जरूरत है। इतना कह के मैं अभी इस प्रश्न पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। प्रोफेसर वैदेहिमा, आपका व्हाई as asked by Professor Rashmida, why is it important to get initiated at an early age? अगर माँ आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो अच्छा होगा। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जयंदा, आपसे भी मेरा हार्दिक जय गुरु। आपकी वजह से मुझे बहुत ही पवित्र सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला, और यहाँ से सभी जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए सभी सभी गुरु बंधु भगिनी सभी को मेरा अंतर प्रणाम। और जैसे कि ये जो प्रश्न है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट इनिशिएटेड एट एन अर्ली एज, तो पहले जो दादा ने कहा है वो भी काफी सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड का और उसका कनेक्शन कैसे है कि अर्ली स्टेज व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू गेट इनिशिएटेड। मेरा ऐसा मानना है कि मैं यहाँ पे दो चीजों को रखना चाहती हूँ। एक, मुझे लगता है कि दीक्षा का एक अंग है जिससे दक्षता बढ़ती है, और दक्षता का बहुत ही गहरा संबंध होता है व्यक्तित्व का विकास करने में। जो हमारी निहित पोटेंशियल है, जैसे कहते हैं कि जो अंतर्यामी है, जो ईशत्व है, वो सभी जीवों में है। जीव की सृष्टि है हम सभी परमात्मा, लेकिन हमारी जो इग्नोरेंस है, हमारी जो अज्ञता है, वो यही है कि हम हमारा स्वरूप जान नहीं पाए। ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर कहा है में कि सद्गुरु शरणापन्न, सत्संग नाम ग्रहण करो, सत्संग का आश्रय लो। मैं कहता हूँ तुम्हें आपकी उन्नति के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। यहीं पे मुझे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दिए हुए, अर्जुन को जो कहा, ये मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहती हूँ। तो हम समझ सकेंगे कि इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे हम एक पॉटर कहते हैं, कुम्हार, वो जब मिट्टी डाल कर बहुत अच्छे बर्तन बनाते हैं तब वो गीली होती है, और जब वो गीली होती है तो कुम्हार अपनी जो कुशलता है, उसकी जो कारागिरी है, उसको जो अनुभव है, वह उसमें ढाल कर एक सुगठित ऐसा
बर्तन वह बना सकता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग ही होता नहीं है सिर्फ, लेकिन बहुत ही काम आता है। जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमारी जैसी एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वैसी जो एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है, वह ठाकुर जी कहते हैं कि एज इन द आइडियल इन whom you place your faith, so will be your vision will be, and उसी प्रकार का आपका चरित्र गठन होगा। और एक जगह मुझे यहाँ पे यही कहना है कि दीक्षा का मतलब है कि हम एक सुकेंद्रिक हो जाए, और जो हमारे सोर्स है, अगर हमारे सोर्स स्वयं परमात्मा है, स्वयं परम प्रेमों में श्री श्री ठाकुर जी, जिनसे अगर हम युक्त होके फिर हमारा जिंदगी में हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, तो समझिए एक छोटा बच्चे को अगर ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है तो उनका जो योग है नाम द्वारा, वो उनकी उस बच्चे की जो इनर पोटेंशियल है, जो इंटेलेक्ट है, वो इतना शार्प हो जाएगा, क्योंकि पहला उसका एक इंडिकेशन है कि दक्षता आएगी। दक्षता से आती है कीननेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना उनका ऑब्जर्वेशन कीननेस होगा, उतना उनका दृष्टिकोण विशाल होगा, और अपनी जो इंटेलेक्ट में जो विवेक बुद्धि है, कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो दीक्षा के माध्यम से हम सत्संग में जुड़ जाते हैं। सत्संग हमेशा, जैसे हम लिविंग आइडियल की बात करते हैं, तो लिविंग आइडियल एक जगह पे ऐसे भी है कि हम अपने कर्म द्वारा, अपने विचार द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा हमारे प्राण प्रिय आदर्श को कैसे संजीवित कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं वही बोलेंगे, वही करेंगे। तो इन तीनों में सुसूत्रता आने के लिए हमें चाहिए कि वी शुड बी अटैच्ड टू द सोर्स, सो वी विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्सेज। तो अगर अर्ली स्टेज में इनिशिएशन देते हैं तो हमारे बच्चों का इंटेलेक्ट उनकी दिशा में इतना शार्पन होगा, क्योंकि फेथ शेप्स द इंटेलेक्ट, ऐसे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है। और वे कहते हैं, इसीलिए मुझे वो याद आया भगवद गीता का श्री कृष्ण ने कहा हुआ कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं कहा है मय्ये अपि, वे कहते हैं मयि एव मन, वो जो एव जो वर्ड है इतना सिग्निफिकेंट है, मतलब तुम मुझ में ही अपनी बुद्धि, अपना मन एक फोकस करो, ताकि आपको अपनी निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः, आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं होगा। देखिए यही बार बार ठाकुर जी वो राम रूप में वही थे, श्री कृष्ण रूप में वही थे। आज इस कलयुग में हम सबको ये नाम रूपी अमृत देने के लिए, हमारी अंदर की जो अंतर्निहित शक्ति है, जो ठाकुरत्व है, उजागर करने के लिए वे आए। और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि जितने जल्दी हम बचपन से वो बच्चों में अगर ये सतनाम का बीज डाल दे, तो उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व इस सुंदरता से निखरेगा कि ठाकुर जी जो कहते हैं कि बीइंग एंड बिकमिंग, सबको बचाना अपने बचना, वे वैसा ही व्यवहार करें। और उनकी बुद्धि विवेक का आचरण करते हुए जीवन वृद्धि के अमृत पथ पर चलेगी, और बाकी के लोगों को भी वे वही पथ में ले जाने के एक सक्षम वाहक होंगे। यही कहकर मैं मेरी बात करती हूँ। जय गुरु माँ। बोथ विशालदा एंड वैदेही माँ इतना सुंदर तरीका से जो दीक्षा के बारे में बताया, दक्षता अर्जन करना, और माँ ने भी गीता से जो कोट को जो अटैच किया, जो कनेक्शन किया, इट वाज आई थिंक रियली अ नाइस एक्सप्लेनेशन। सो इमीडिएटली okay, we have a question from Manoj Patroda from USA. May I request Manoj Patroda to please ask a question? I think this is your question. I think it will be very related to the first question. Manoj Patroda. Okay, Joy Guru, all extremely nice discussion and program in progress. So my question is like, especially in the Western countries and in most educated societies, young children are encouraged to think independently, ask questions, express their opinions, take their decisions, be responsible for it, and so on. So, and when they reach this adolescent age, teens or just post-teens, some of them, actually a growing percentage of them, believe that by surrendering oneself to someone, they would lose this independence. They're basically sort of a right to independent thinking, independent decisions, and so on. So how do we address this? आप थोड़ा सा हिंदी में भी बोलेंगे मनोज दा? तो ये जो आधुनिक सभ्यताएं हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों को
काफी प्रोत्साहन किया जाता है कि आप स्वतंत्र भाव से अपने निर्णय लो, अपने विचार रखो, अपने प्रश्न पूछो और अपने निर्णय लो खास तौर पर। तो जब वो थोड़ा बड़े होने लगते हैं और युवा होते हैं, तो उनमें से कईयों को ऐसा लगता है कि यदि हम दूसरे किसी के पास शरणार्थी हो जाए, किसी को आत्मसमर्पण करे, तो फिर हमारा जो स्वतंत्रता खो जाएगा। तो ये एक विडंबना है। अब ऐसी परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए, ये प्रश्न है। बहुत सुंदर। प्रोफेसर आरबी चौधरी दा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स आप बोलिए टू द स्पेसिफिक। जय गुरु। जय गुरु दादा, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस यस यस। हाँ चौधरी दा, हम लोग परिष्कार सुन पा रहे हैं आपको। In fact, young people are more energetic and ambitious. They always want to be unique and different from others. But most of the time, thinking of young people is passion-centered or passion-oriented. This is the root reason. This is the root reason of the situation. They have complex and fear that surrendering to an ideal will restrict their ability to think independently. This very fearful and complex attitude results into deviation and deformation in their mode of thinking. Real thinking must be compared with a reference to an ideal thinking. It should be more relative and relevant to an ideal thinking. Such a fearful mode of thinking is incorrect. Therefore, it must be important that these young people should be more ideal-centric rather than idea-centric. Sree Thakur says, लोगों को आइडियल-सेंट्रिक होना ज्यादा जरूरी है rather than idea-centric. लेकिन हो ही उल्टा हो रहा है, आइडियल-सेंट्रिक होने के बजाय आइडिया-सेंट्रिक होते जा रहा है। और फिर दूसरी बात है, और जब वो आइडिया सेंट्रिक हो जाता है तो वो ऑस्पिशियस नहीं रहता है, वो एम्बिशियस हो जाता है। दोनों जो पॉइंट पर श्री ठाकुर का मैसेज जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो यंग पीपुल है, दे शुड बी मोर आइडियल सेंट्रिक रादर देन आइडिया सेंट्रिक, एंड दे शुड बी मोर ऑस्पिशियस रादर देन एम्बिशियस। ये दो जो रूट रीजन है, इस दोनों रूट रीजन को अगर ओवरकम किया जाए तो जो इनर्जेटिक यंग पीपल होते हैं, इनके इनर्जेटिक पावर को, इनके पास इतनी ताकत होती है, उस ताकत को इतना दूर तक इस्तेमाल किया जा सकता है कि दुनिया की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए काफी एफर्ट की जरूरी है। श्री ठाकुर आजीवन इस बात पर चलते रहे। उस समय भी श्री ठाकुर बोले थे, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान तीनों कंट्री मिलाकर के 33 पॉपुलेशन थी, 33 करोड़, आज तीनों कंट्री मिलाकर के 180 करोड़ है। तो उस टाइम में 1/3 पीपल शुड बी, एटलीस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री शुड बी इनिशिएटेड। आज के दिन में 60 करोड़ पीपल शुड बी इनिशिएटेड एज पर श्री ठाकुर का आइडियोलॉजी। जो है, जब 33 करोड़ में उन्होंने 10 करोड़ बोला था, तो आज 180 करोड़ में कम से कम 60 करोड़ दीक्षा होना चाहिए। और ये दीक्षा कौन लेगा? अगर 80 इयर्स का, 70 इयर्स का, 60 इयर्स का लोग अगर दीक्षा लेंगे तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सो यंग पीपल शुड बी मोर auspicious and ideal centric rather than idea centric and ambitious. This is what I meant to say. And so finally I would say this attitude, this temperament, this ideology, this thing is absolutely incorrect as per Sree Thakur's ideology. Thank you very much, sir. Jai Guru. Dr. R.B. Chaudhary, the SPR, and Pujani Avindada ka jo aap physics teacher rahe, it's really great to have you. And so the Manas Patra, can I also hear from Dhriti Shunnuda, SPM from Assam? Jai Guru, Dhriti da. Jai Guru Dada. Jai Guru to everyone present, and
At the very beginning, I'd like to express my gratitude to the organizers for giving me this opportunity to share my thoughts with all of you. Coming to the question of being दादा एक रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा सा आलोचना करेंगे तो बहुत सारे ऑडियंस को शायद सुनने में मैं चेष्टा करूंगा थोड़ा हिंदी में भी बोलने के लिए। मैं इंग्लिश से ही शुरू कर रहा हूँ। So this very idea of being independent, we human beings, we are born with a free mind, a free will, and we cherish this capacity of human beings to be, rational, to be reasonable. But if we do a little introspection, if we think about it, we realize much of our thinking, much of our actions is sometimes very much against the ideas of notions of rationality. We often do things that, our inner being doesn't allow us to do. So the question is, are we truly, really independent? Are we not controlled by our complexes? Are we not guided by our petty, self-centric interests, greed, gluttony, lust, ego, pride? Are we not controlled by them? Now the question is to become truly independent, to come out of the clutches of all these that almost every now and then lead us to unhappiness. We must surrender to the one who has mastered all of these. So that is the idea behind why we should, accept a living ideal, because the living ideal has mastered all of it. And when we surrender to him, we also are able to master the complexes. And when I ponder over, this very idea of being independent, satsang and Sree Thakur and this whole movement, the goal of this movement is to make us all interdependent. We are responsible for what will happen to me, to the society, to my family, to the country, to the world. So we are not truly independent. We are all interdependent right from our birth. हमारा जन्म जब से हुआ, वो भी किसी न किसी के ऊपर that was dependent. And when we live in the society, for every necessity, we depend on others. And Sree Thakur wants us to be lovers of existence, and not only individual existence, but also the existence of others. And that will only happen when we love the supreme existence, the supreme soul. So that is the core of satsang movement, that when we surrender to the ideal who is responsible for the well-being of all, we also automatically, develop that kind of a consciousness. To address the question directly, that is, do we have to surrender our independent thinking when we surrender to an ideal? I understand, ये जो प्रश्न आया है, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है, इसमें जो लिबर्टी हम लेते हैं या एक स्वाधीन जो हमारा भाव है, शायद जब हम आइडियल को लेते हैं, किसी गुरु का दीक्षा लेते हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे जीवन में आ जाता है, ऐसा हम लोग समझते हैं. लेकिन this thought is also entirely a myth, because if you think about a lens never blocks your vision. In fact, it gives you clarity. So the presence of a living ideal in your world gives you clarity regarding the goal and purpose of your life. I would like to draw a couple of analogies here to describe how the presence of the living ideal doesn't put restrictions on us. In fact, it allows us to unfold our wings. For example, first analogy that I want to take is that of a compass. The compass that navigators used. Nowadays, we have GPS system. Now, without a compass, the navigators, the seaman, would be lost. And this vast ocean of life, where we are all sailors, the presence of a living guide is that of like a compass, who guides us to the right path. Second analogy that I want to take is that of, let's say, an instructor or a pilot who jumps with us when we
do adventure sports like paragliding or parasailing. Now, these people who jump along with us, they're constantly giving us warning instructions to do this and that. Why they are doing that? So that we enjoy that flight. So the instructions that the living ideal gives us, they are not trying to shrink our life. In fact, they are meant for, enjoying life to the fullest. So if I may be allowed to draw, one more analogy, which I often do, is that of the game of a, football or a tennis game. When you play football, when you play tennis, if suppose you're playing tennis and the nets are pulled down, there's no net, will you enjoy the game? Similarly, if you think about the game of football, if the boundaries are not drawn, if rules and regulations are not there, will you truly enjoy the game? Similarly, to enjoy life, the presence of a living ideal, the instructions of the living ideal, is like those nets. So it is not truly hindering the process of independent thinking. In fact, it is allowing you to do rational thinking and take certain decisions in life, which brings adjustment in your life and true happiness in the true sense. मुझे थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए कहा गया था, तो जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो बात हो रही है कि हम जब गुरु को लेते हैं, दीक्षा लेते हैं या किसी लिविंग आइडियल को सरेंडर करते हैं, तो हमारा जीवन सीमित हो जाता है। सीमित नहीं होता है, उसका प्रसार और उसका जो व्यापकता है और वो बढ़ जाता है। और उसका मैंने अंग्रेजी में 2-3 उदाहरण आपको दिया। समय सीमित है तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। Thanks, Jiti Sundar da. Very energetic, I know, is extremely devotee. I think we have addressed this question asked by Manoj Patra. Both Professor R.B. Chaudhary and Dr. Jiti Sundar have addressed this question with a nice explanation and with example. So we go forward for the next question. Our next question is from Tora Vishwas Ma, Dr. Tora Vishwas Ma, a postdoctoral fellow from United States of America. Tora Ma, please. Jai Guru. Thank you. Jai Guru. So this question is about there are some people who think that it is enough to have high moral standards, and if they can naturally discriminate between the good and the bad, then what is the need for having an ideal in life? I will try to translate it to Hindi. कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर उनमें ऑलरेडी उनमें एक उच्च नैतिक मापदंड हो, अगर उनको ऑलरेडी पता हो कि नेचुरली पता हो उनको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस क्षेत्र में उनको एक गुरु की क्या आवश्यकता है, उनको एक उनकी लाइफ में एक आइडियल की क्या आवश्यकता है? Good question from Torama. Vishalda, please. Thank you very much for this very, very relevant question. Brother and sister, our life is not that long, it is too short. And we human beings are also a goal-seeking entity. We have a goal to know who we really are, where do we come from, what is the meaning and purpose in life, all those kind of things. Therefore, in this short life, as the earlier Dada said, in order to navigate toward those goals, it is good if somebody has walked through these questions and they have realized the nature of reality, and they have also proven their life is their message. Therefore, it's very important to follow them, because existence is fact, brother and sister, but life, the living, art of life requires an art, and art is a learned phenomena. Therefore, we need certain kind of framework, certain kind of ideology to guide, to streamline our life. Today, there is a huge information load. We are creating layer after layer, the informations and knowledge part, the bookish knowledge. But what about the wisdom, how to internalize those our own basic innate goodness, how to unleash our own human potential? So therefore, we need a
kind of ideal or some kind of framework, some kind of, as the Dada said, the compass, some kind of GPS like that. I have been doing a lot of studies on resilience, what contributes to psychological resilience, Abhichalan ka vigyan. Then one of the things that helps is that if you have some kind of resilient role model or a kind of psychological hook, it may be in history or mythology, or you have a living guru, or those who have given the ideal. Those people who have that kind of psychological hook, they become more resilient during the time of disorienting dilemma. The other thing why we also need an ideal is that we need that kind of emotional contagion which creates our endocrinology for our thinking, feeling, and doing in the right direction. Therefore, in order to have those better emotional contagion, these ideals might be a very great help. I originally come from Nepal, and I know that when you need to go to a difficult terrain, for example, Mount Everest or Mount Kanchenjunga or here and there, then if you try all alone, my friend, I can tell you, it is not guaranteed that you can reach. Some people reach it. Some are kind of Ekalabya, but not all of them are like that. We need the help of Sherpa, some guide. They have walked through and they have some kind of thing. Also, therefore, we need a lot of different kind of metaphor here. And for me, in this short life, ये जो हमारी छोटी सी जिंदगी है, क्या क्या करेंगे? व्यवहारिक सत्ता एक तरफ है, पारमिक सत्ता दूसरी तरफ है. सारे गुरु अपने तरीके से जिस तरह से उनको एक आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ था, जिस तरफ से उन्होंने एक जीवन विज्ञान सीखा था, वो कहाँ भटकते जाए लोग. भटकने से बचने के लिए हमको बहुत जरूरी है कि एक जिंदगी में एक ऐसा मार्गदर्शक हो जिसके जरिए हमको ये पता चले कि हमारा जो इनर व्हील है, हमारा जो अंदर के जो एक ब्रह्म तत्व है, जो टोटल ह्यूमन पोटेंशियल है, कि हम उजागर करें. ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो आइडियल आपको किसी तरह का फैनाटिसिज्म का तरफ न ले जाए, या कोई कन्फर्मिटी, सिर्फ मैं मुझको ही मानो, दूसरों को मत मानो, ऐसा नहीं. जो ये बोले ये भाई तुम भी प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, जैसे ठाकुर कहते हैं, तो यू कैन अनलीज, आप अपने जो अंतर की संसार को थोड़ा परिशुद्ध करते जाएंगे, फिर रियलिटी को देखते हैं कि अरे ये जगत तो सुंदर सच्चिद आनंद से भरा हुआ है, सारा जगत हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं. ये राइट आर्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लिविंग के लिए भी एक आइडियल जरूरत है. इतना कह के मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ. पता नहीं मेरी हिंदी कैसे हुई, ये 34 साल विदेश में बैठते बैठते थोड़ा भूल गया हूँ हिंदी. थोड़ा बहुत उड़िया भी आता है, इसलिए वो जो गाना उन्होंने गाया था वो अमिताभ भाई ने, मैं भी थोड़ा बहुत रोने का मन कर रहा था. इतना कह के सबको मैं इस अवसर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ. सत सत प्रणाम. जय गुरु दादा, जय गुरु. मैं आपका भाव समझ सकता हूँ दादा, आप हमारे साथ रहिए, हम आपसे सुनेंगे. मतलब ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है. हाँ, आप नॉर्वे में, ओस्लो में लास्ट 30 ईयर्स से है, और आज आपको हमारे बीच आप उपस्थित है. हम आप सभी से सुनेंगे, बिकॉज ड्यू टू टाइम लिमिट वी हैव टू आई मीन follow the program as quick as possible. श्रोतेय आरबी चौधरी दा, अगर आप इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक कुछ आंसर आप दे सकते हैं. जय गुरु दादा. दादा जय गुरु. जय गुरु दादा. Let me explain it. People say it's enough to have high moral connector, a moral standard, and they feel they can normally discriminate between the good and bad. Why then should one accept an ideal? It's not sufficient to have high moral standard to discriminate between good and bad. Unless and until high morals
standard is supported by and sandwiched by an ideal, it is almost feeble and fragile, and it cannot last for a long time. When hard time comes into play in the life of a man, only and only ideal standard can come forward to stand by him, and he feels adequately energetic and strong. इनफैक्ट आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो एक सीमेंट का काम करता है, जो हमारे जिंदगी में जितने गैप्स हैं, जितने कमजोरी हैं, जितने दुर्बलताएं हैं, वो सारे दुर्बलताओं को, सारे गैप को फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब देखिए, अगर हम अपने भारत के, अपने देश के इतिहास से कुछ अगर सबक लें, तो पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े बादशाह थे, महाराणा प्रताप इतने बड़े थे, लेकिन वो लोग सिर्फ एक आइडियल के स्कार्सिटी में बहुत कुछ होते हुए भी, इतने निपुण, इतने गुणवान, इतने धनवान, इतने बलवान होते हुए भी उन्होंने जीवन में फतह नहीं पाई। लेकिन एक साधारण युवक जैसे शिवाजी थे, शिवाजी का जो टेम्परामेंट था, उनका जो एग्रेशन था, उनका जो एक इनिशिएटिव था, वो बिल्कुल नेगेटिव था। समर्थ रामदास ने उसके टेम्परामेंट को, के डायरेक्शन को बिल्कुल 180 डिग्री से चेंज कर दिया, और वो एक साधारण क्रिमिनल शिवाजी से वो छत्रपति शिवाजी हो। तो अब बताइए कि आइडियल सेंट्रिक होना या आइडिया सेंट्रिक होना कौन सा बेटर है? जब तक आइडियल सेंट्रिक नहीं होगा, हमारे जीवन में कितने भी बड़ी प्रगति हो जाए, उन्नति हो जाए, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई ऑडिटर नहीं है जो उसका अकाउंटेंसी रखेगा। लेकिन अगर हम आइडियल सेंट्रिक होते हैं तो हमारे सदगुरु होते हैं, उनको पता होता है इसने क्या क्या किया है, इनके क्या क्या लैप्सेज हैं, और उन लैप्सेज को कैसे कवर करना। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन बहुत एग्रेसिव राजा थे, और उन्होंने कलिंगा पर या जितना भी, जैसे भी उतना उस टाइम में परेशान किया, जितना आक्रमण किया, जितने लोग मारे गए, उससे उनको संतुष्टि नहीं मिली। और बाद में जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि का उन्होंने कंसेप्ट दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, शांति शरणम गच्छामि, प्रेम शरणम गच्छामि। जाना ही पड़ा। तो जब तक आइडियल का सपोर्ट नहीं लिया जाए, आइडियल के लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दिया जाए, तो लाइफ में सारे पैरामीटर होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स बाद में धूमिल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इवन हमारे सत्संग की बात अगर करें तो सत्संग में श्री ठाकुर ने ऐसे लोगों को, जो जिंदगी में जिनका कोई हाई मोरल कैरेक्टर नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन श्री ठाकुर ने उनको एक छोटे से छोटे इंसान को इतना बड़ा बना दिया। एक एक क्रिमिनल को श्री ठाकुर ने पकड़ करके उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताएं तो दुख होगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि श्री ठाकुर की दया से कितने लोग अपने जीवन में उन्नति पाए, अपने जीवन को धन्य किए, अपने जीवन को सदगति प्राप्त किए। उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जो शराब पीता था उसका शराब छूट गया, जो और सब तरह के कुकर्म में लिप्त थे, जो व्यभिचारी थे उनका व्यभिचारी खत्म हो गया, जो और तरह से निकम्मे थे उनको कर्म में दक्षता उनको श्री ठाकुर दे दी। तो और जीवन में और चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, श्री ठाकुर की बात बता रहा हूं। एक दिन श्री ठाकुर कुछ सोच रहे थे, वहीं पर केष्टोदा थे, प्रफुल्लदा थे,
सारे लोग थे। तो उनमें से शायद कृष्णदा ने पूछे कि ठाकुर जी आप बहुत चिंता मग्न हैं, आप क्या सोच रहे हैं ठाकुर जी? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो 500 साल के बाद तुम लोगों को कहां रखना है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। अब बताइए आगे 500 साल का जमाना कैसा आएगा, उस समय वो मुहूर्त कैसा रहेगा, और उस मुहूर्त में किसको इस धरती पर आविर्भाव होने का मौका मिलेगा। तो इस बात की प्लानिंग श्री ठाकुर पहले करके गए। तो 500 साल के बाद हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोग को बाद पता नहीं 10,000 साल के बाद भी कोई नंबर मिलेगा धरती पर आने की संभावना कम। मैं एक बार श्रद्धेय श्री राजू दा के पास बैठा हुआ था, जो लालदा के बड़े सुपुत्र हैं, सत्संग के वरिष्ठ कर्मी हैं। तो राजू दा बता रहे थे, चौधरी दा हम लोगों को अभी 5-6 बार आना और पड़ेगा। तो मैं हैरान हो गया कि राजू दा जैसे जिनका 3-4 जनरेशन श्री ठाकुर का 24 घंटा आजीवन सेवारत रहे, वो जब बोलते हैं 5-6 बार आना पड़ेगा, तो पता नहीं हम लोगों का रेक्टिफिकेशन, हम लोगों का प्यूरिफिकेशन, हम लोगों का करेक्शन कितने जन्म में हो। लेकिन ये तो है कि आइडियल सेंटिक होने के बाद परम पिता की दया, श्री ठाकुर का आशीर्वाद और आचार्य प्रथा का जो हमें जो एक लिंक मिला है, आचार्य प्रथा, ये दो चीज, ये आचार्य प्रथा और इष्टमिति, ये दो चीज ने जो श्री ठाकुर हम लोग को दे के गए, इसके लिए हम लोग जन्म जन्मांतर तक श्री ठाकुर का आभारी है। अगर आचार्य प्रथा नहीं होता तो आज सत्संग में कितने पाखंड पंडे, कितने दलाल हो जाते, उसका कोई मतलब नहीं। आज इष्टमिति का अगर प्रोविजन नहीं होता तो पता नहीं हम 10 बजे भी सो के उठते, 9 बजे भी उठते, या दिन में कुछ ठाकुर जी को कभी याद नहीं करते। ये दो चीज श्री ठाकुर ने कितना दया करके हम लोग को दिया है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम लोगों को आइडियल सेंटिक होना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही मैं जो जैन दा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले भी एक आध बार हमें बताया था कि आप जूरियम के दादा हम लोग यहाँ ओवरलोडेड हैं, रश्मि दा कुछ टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ढीला ढाला आदमी हूँ, मुझे कुछ आता जाता है नहीं। इन्होंने बोला कि अभिन बाबू के पास 2 साल तक ऐसी बात नहीं है। अभिन बाबू के जुड़ना एक परम पूजपात श्री दादा का एक लीला था कि उन्होंने हमें अभिन बाबू को सेवा माना जीवन पर्यंत करने का एक मौका, एक लिंक बना दिया। इसके साथ ही इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई, गुरु बहन और सभी वरिष्ठ कर्मियों को मेरा रानंदित जय गुरु। जय गुरु जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। सो द वी आर चौधरी दा बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। और मैं ये भी बता दूं 4 दीक्षा भी हुआ है IIT धनबाद से, जो 4 PhD स्कॉलर का दीक्षा हुआ है दादा के माध्यम से हुआ है। दादा जो बोलना चाहते थे, जैसा आइडियल सेंट्रिक होना क्यों जरूरी है, जैसा हमारा जो हम लोग मालूम है महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, जो हम सभी इतना सम्मान के साथ हम लोग लेते हैं, छत्रपति शिवाजी, उनका भी एक जो गुरु था रामदास, वो रामदास गुरु जो बोलते थे वो आइडियल सेंट्रिक होके अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग भी सभी लोग छत्रपति रेस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी के तरह भी हम लोग भी जो गुरु यही चाहते हैं, हम लोग जो गुरु जो बोलते हैं अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे ठीक तरह से, so that is the importance of having an ideal centric guru in our life. I think it's a very nice explanation by both Vishalda and Arvida. So we have the last question. Due to time limit, we have to go fast. So the last question will be asked by Professor Tarun Vishwasda, Triple IT रांची। दादा पहले NIT सिक्किम में था, अभी ट्रिपल IT रांची में आ गया। दादा आप एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आप कीजिए। जय गुरु। जय गुरु to all. With my master's grace, I feel very elated for being able to be a part of this grand celebration of 1-year Professor, Scientist, Dr. Research Scholar Smith. I pray to the lotus feet of my love Lord for everybody present here of their well-being. Now, I'd like to put the final question of today's discussion. And the question is, there are yet others who feel that adherence to parent is enough. Why does one need to accept an ideal even if one is attached to parent? इसको अगर हिंदी हम लोग बोलना चाहे कि पिता माता के प्रति श्रद्धाशील होने के बावजूद क्यों एक इंसान की जिंदगी में आइडियल और गुरु ग्रहण अनिवार्य है।
इधर में उपस्थित जो लोग युक्त हुए हैं, सबका सुस्त स्वास्थ्य इष्टसल जीवन में ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं हम लोग तो पिता माता को पूजा करते ही है, देन व्हाई शुड आई नीड ए गुरु। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बाय प्रोफेसर तरुण कुमार विश्वास सा। प्रोफेसर वैदेहिमा प्लीज, इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? जय गुरु। Am I audible? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ आप बोलिए माँ। अभी जो प्रश्न पूछा है दादा ने, वो प्रश्न ऐसा है कि एक बात जरूर है कि जिनके मन में अपने माता पिता के प्रति सचमुच श्रद्धा है, उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है? एक चीज इसमें हमें देखनी चाहिए कि माता पिता, या जैसे हमारे जब छोटा बच्चा स्कूल में माता पिता उन्हें क्यों भर्ती करते हैं? क्योंकि पूरा ज्ञान माता पिता नहीं दे सकते। स्कूल में जब स्कूल खत्म करके जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन लेते हैं, तब भी हम क्यों आगे आगे जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने अब तक जितना भी ज्ञान पाया है उससे और है जो हमें पुकारता रहता है, और हमारी हर व्यक्ति की जो एक ध्येय है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की तरफ जाना। दूसरी एक चीज है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वह एक्सपांशन की तरफ जाना चाहता है। और वह क्यों है, इसके अगर हम सोचते हैं तो उसमें शायद इसका मुझे लगता है उत्तर मिल जाएगा। वह इसीलिए है कि जब तक जीवन में अभाव का भाव नहीं मिट जाता है, तब तक हर जीव की, मनुष्य की एक चाह रहती है कि किस प्रकार मेरे जीवन में जो एक अभाव है वो किस प्रकार मिट जाए। और अभाव का भाव हर व्यक्ति अलग अलग उम्र में अपने जीवन के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जरूर एक्सपीरियंस करता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनके कई जन्म ऐसे ही बीत जाते हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि ये पाथ जो है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध है वो इतना है, कठिन है कि एक ठाकुर जी ने जैसे बताया, एक सच्चा याजक जिन्होंने ठाकुर जी के जीवन धारा अपने चरित्र में इतनी सुंदरता से अपना ली है कि उसके चलन से, उसके चाल चलन से शायद ऐसे लोगों में वो प्रेरणा मिलती है। नहीं तो ऐसे कई जीव है, कई जन्म हमारे भी मालूम नहीं है कितने आगे के पहले जन्म ऐसे हुए होंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि केवल मनुष्य जन्म में आकर की हमें एक मतलब उत्क्रांति के स्तर पे हम एक अच्छा फॉर्म पाए, ऐसे नहीं है। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा की बुद्धि होना, इसके लिए भी बहुत सत्कर्म और उनकी कृपा चाहिए। क्योंकि कोई भी आप देखिए, कोई मिलियनियर है, कोई बहुत ही एक जाना माना समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई अपनी अपनी क्षेत्र में एक शिखर पर पहुंचा है, ऐसे अनगिनत उदाहरण है। लेकिन उनके जीवन में जो अभाव है वो पूरी तरह से मिटता नहीं है। तब तक नहीं मिटता है जब तक उनको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए सिर्फ माता पिता तो एक गुरु है, लेकिन वो पूरा जो ज्ञान है वो नहीं दे सकते हैं। और जब तक मनुष्य को अपना जो परमोच्च ध्येय है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो नहीं होता है, तब तक उसका अभाव का भाव नहीं मिटता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि गुरु की आवश्यकता हर एक को है, चाहे आप उनको पहले नहीं लगे कि, लेकिन बाद में जिंदगी में यह जरूर महसूस होता है कि मेरा जीवन किस लिए है, फॉर व्हाट आई हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड। जिनको, और हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये प्रश्न मन में जरूर आता है, लेकिन उसका उत्तर कैसे खोजे ये उन्हें पता नहीं है, या तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन आवश्यकता तो जरूरी है। और दूसरा एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे दे देती हूँ। पहले जो भी प्रश्न थे उसमें भी इसका कनेक्शन मिलता है। हम आज के बच्चों की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन आप शास्त्र में जाके उनको स्क्रिप्चर में स्टडी के लिए आप प्रेरित कीजिए। उनको मत बताइए कि आपको मानना है क्योंकि मैं मानता हूँ,
या मैं मानती हूँ, उनको बताइए, क्योंकि हमारे वेदांत का, आर्य सनातन वैदिक धर्म का यही एक मापदंड है कि वो किसी को, वो धर्म आपको मतलब भय में नहीं रखना चाहता. दे विल शो यू द पाथ एंड द फ्रीडम टू चूज इज योर्स. बट वो वही कहता है कि जब तक आप एक आइडियल से सरेंडर नहीं होते हैं, जब तक गुरु नहीं प्राप्ति होती है, तब तक आपका आगे का जो मार्ग है वो अंधकारमय ही रहेगा. तो ध्रुव का उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ. हम सभी को मालूम है कि ध्रुव के जीवन में ऐसी एक बात आई थी कि जब उनको अपने ही पिता ने उनकी गोद में जो बैठे गए थे, तो उनको उनकी जो सौतेली माँ थी उसकी वजह से अपमान सहन करना पड़ा है. तो वो 5 साल का, 5-6 साल का बच्चा है, उसमें वही एक जो खौफ था, वही इंडिपेंडेंस था जो आज के बच्चे ऐसे, उनको लगता है आज में ऐसा नहीं है, हर फ्रीडम ही चाहता है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम. तो ध्रुव जब तप करने के लिए गए, क्योंकि उनकी माँ ने बताया कि ऐसे स्थान जहाँ पे मुझे कोई ना नहीं कहे कि आप उतरो वहां से, तो वो जब तप करते हैं, तो ठाकुर जी ने ये जिक्र किया है आलोचना में कि भगवान विष्णु का आसन डोलने लगा है, और भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आप जाइए, गुरु के रूप में उन्हें मंत्र दीक्षा दीजिए, क्योंकि तब तक जब तक उनकी मंत्र दीक्षा नहीं होती तब तक मैं उनके सामने नहीं आता, क्योंकि वो बल उसमें नहीं आएगा. और तभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी ने गुरु रूप में दिया है, और उसके बाद ही विष्णु जी प्रकट हुए हैं. ये अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर जीव चाहता है फ्रीडम, हर जीव चाहता है मुक्ति, लेकिन वो कैसे मिले, उसकी जो एक जो बात है वो कोई बता नहीं सकता सिवाय गुरु के. और पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, फुलफिलर द बेस्ट है, वो ही एकमेव है जो ये पथ पर हमें ले जा सकते हैं. इसलिए गुरु की अनिवार्यता ये कायम रहेगी और कायम है. इसी को मैं यहीं से मैं मेरी बात रखती हूँ. जय गुरु माँ, जय गुरु. बहुत सुंदर माँ जी, बहुत सुंदर. मैं जितने बार आपके पास से सुनता हूँ, इतना सुंदर करके, इतना नाइसली स्मूथली आपका जो एक्सप्लेनेशन, आई थिंक वी हैव एड्रेस द क्वेश्चंस विथ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन ए लॉजिकल वे. जस्ट टू कंक्लूड, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जस्ट टू कंक्लूड आई रिक्वेस्ट हमारा सद्य धीति सुंदर गुप्ता दा, आप जस्ट 1 मिनट में अगर आप पूरा इसको आपका जो ये क्वेश्चन है इसको अगर कंक्लूड कर सकते हैं. जय गुरु. जय गुरु. सुनाई दे रहा है ना दादा? हाँ. एक मिनट में, जैसे कि बैदी माँ ने कहा कि ये जो अभाव का भाव है, इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ. ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोग सभी एक अपना जो स्रोत है, अपना जो सोर्स है, जहां से हमारा सृष्टि हुआ है, उसके साथ भी हम जुड़ना चाहते हैं. ये जो भूख है, ये चाह हमारे सबके भीतर है, और एक तृष्णा हमारे अंदर है. और इस तृष्णा का निवारण हमको हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे पिता माता है, वो नहीं कर सकते. इस चाह का निवारण एकमात्र जो आदर्श है वो कर सकते हैं. अभी का प्रश्न और पहले का जो प्रश्न था, जो नैतिकता की बातें हैं, आदर्श की बातें हैं, समाज में नैतिकता की कभी कमी नहीं थी. नैतिकता तो है ही, साथ में लॉज भी है, फिर भी समाज में इतने बड़े क्राइम क्यों होते हैं? एक जो क्रिमिनल है, मैं नहीं मानता कि वो अपने पिता माता को श्रद्धा या भक्ति नहीं करता है, करता है, फिर भी वो वैसी हरकत करता है. क्यों? क्योंकि वो उतना ही सीमित है. एकमात्र जब हम लिविंग आइडियल के साथ जुड़ेंगे, जो हम सभी को जो सृष्टि की है, सबके जो क्रिएटर हैं, तभी हम उनके क्रिएशन के प्रति हमारा मोह जन्मेगा. तो इसीलिए तात्पर्य जीवंत आदर्श का इसीलिए है. और ये जो चाह की भाव है, पिता माता तो जीवंत गुरु हमारे हैं ही, लेकिन और जो ग्रेटर फुलफिलमेंट है, जो ठाकुर जी एक बाने में बोले हैं कि महाचेतन समुत्थान, तृष्णा का एकांत जो निर्वाण का जो बात है, एकमात्र उनसे जुड़ने से ही वो हो सकता है. मैं समय समाप्त हो रहा है. आप सभी का मंगल के लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करके मैं यहीं पे अपना वाणी को विराम देता हूँ. जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु. श्रद्धेय अतिथि सुंदर दा मेरा फ्रेंड एंड दोस्त जैसा है, बहुत ही एनर्जेटिक, एंड पूजन अविंद दा के भी बहुत ही क्लोज है, बहुत ठाकुर जी का काम में रहते हैं, कभी भी ना नहीं करते. तो एनीवे, सो आई थिंक लाइक लास्ट 11 सेशन वी हैव एड्रेस्ड मेनी social issues, social problems, and we have, I think
with the help of all the panelists, we have explained many social issues in a very logical and systematic way. So today's topic, an inevitable and diksha, an inevitable and integral part of life, has been addressed by Professor R.B. Chaudhary, Professor Vishal K. Sitaule, Professor Vaidhilame, and Professor G.D. Sundar Gupta, SPR. Before we go to the Joy Radhe Kirtan, मैं आप सभी को बता दूं, इतना जो सुंदर जो वीडियोस ऑडियोस जो पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि अभी ऑनलाइन तो ऑलमोस्ट खत्म, मतलब अभी ऑफलाइन शुरू हो गया, ऑफिस स्कूल सब कुछ खुल गया, लेकिन फिर भी हमारे आज यहाँ पे मोर देन 600 जो ऑडियंसेस जो यूट्यूब में और यहाँ पे हमारा जूम मिल के सब ऑफलाइन शुरू हो गया, फिर भी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। इतना जो सुंदर सुंदर ऑडियो वीडियो आप लोगों ने देखा, वेद प्रकाश दास फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सूर्य प्रकाश महापात्र फ्रॉम बेंगलोर, शिल्पी कर्ण प्रोग्राम इंजीनियर फ्रॉम बेंगलोर, सुदेश नाकर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम बांकुड़ा, डॉक्टर माधव हावलादार फ्रॉम बांग्लादेश, रंजना सिंह फ्रॉम लखनऊ, नंदिनी सरकार फ्रॉम प्रयागराज, प्रीति कुमार गांगुलीदा फ्रॉम लखनऊ, श्रद्धेय चंद्रशेखर राउदा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अतनु घोष एंड मौमिता घोष फ्रॉम कनाडा, Nivedita Pan and Devanjana Singh Roy, PhD scholar from SN Bose National Center for Basic Science, Atanu Ghosh and Moumita Ghosh from Canada, उन्होंने ऑडियो भी बनाया, प्रोफेसर संतोष कुमार एंड शालिनी फ्रॉम ट्रिपल IT रायपुर एंड नंदिता पान PhD स्कॉलर फ्रॉम IIT कानपुर। इतने सारे दादा माँ भाई बहन मिलके इतने जो सुंदर सुंदर वीडियो बनाया, इतना सुंदर स्लाइड्स बनाया, सो वी आर थैंकफुल तो नहीं बोलूंगा, ठाकुर जी का काम सभी लोग मिलके किए। आइए सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है पुणे से डॉक्टर अंजलि रामदास सूर्यवंशी, प्लीज उनको को-होस्ट बनाइए। सत्यवान सूर्यवंशी नाम पे जुड़े हुए हैं। शी इज ए लेक्चरर इन जूनियर कॉलेज पुणे। हम लोग चेष्टा किए पूरा वर्ल्ड में, इंडिया का हर स्टेट से, हर कंट्री से ऑडियंस यहाँ पे होने के लिए। तो मैं माँ को अनुरोध करता हूँ, माँ आप जय रति कीजिए। जय गुरु। जय जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवे धर्म अधर्म कुधर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन भवे आशा जपना में करो रे। राधे गोविंद नाम की मदन नयन निरसरा भासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवे धर्म अधर्म कुधर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद दारुण दारुण, बहुत सुंदर। आप सभी को जय गुरु बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं बता देता हूँ, हमारा जो श्रद्धेय सूर्यवंशी अंजलि रामदास सूर्यवंशी माँ, हमारा श्रद्धेय रामदास सूर्यवंशी जी का बेटी है, और माँ ने अपना मतलब ससुराल से यहाँ पे आया, क्योंकि सभी जो फैमिली के साथ एक साथ जय राधे कर पाए। माँ को मैंने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि इतना सुंदर जय राधे के बिना सत्संग पूरा ही नहीं होता। बहुत सुंदर हम सभी लोगों ने एंजॉय किया, एंड आई एम श्योर क्योंकि ठाकुर अंतर्जामी है, आचार्य परंपरा अंतर्जामी है, दे विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत सुंदर माँ, मैं आपके और आपके पूरे टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु जय गुरु। आप लोग सभी उपस्थित रहिए। हमारे बीच डॉक्टर ज्योतिन्द्र मोहंती दे है, मनोज पात्रोदा है, हम सभी के पास से सुनेंगे, आप लोगों को भी पास से सुनेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी ध्वनि के लिए हमारे बीच जर्मनी से उपस्थित है पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉक्टर प्रणय कुमार विश्वास, KIT फ्रॉम कार्लसरूहे जर्मनी, एंड डॉक्टर रथींद्रनाथ PhD स्कॉलर उजबर्ग फ्रॉम जर्मनी। आप दोनों मिलके ध्वनि और प्रतिध्वनि दीजिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम् वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गम् वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। क्या बताओ, प्रणय दा एकदम पहले से डे 1 से हमारे बीच उपस्थित है। मैं प्रणय दा और रथींद्र, मैंने सुना है वेरी यंग एंड एनर्जेटिक सत्संगी, अभी जर्मनी में PhD कर रहे हैं। मैं आप दोनों के लिए ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू श्रद्धेय ज्योतिन्द्रनाथ मोहंती दा, आई मस्ट से हमारा जो ये प्रोफेसर मीट, ये संभव नहीं होता। हमारा सत्संग जगत पे जितने सारे प्रोफेसर, रिसर्चर, PhD स्कॉलर है, हम सभी लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये कोई लोकल कोई सत्संग नहीं, इस जस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ID से ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन इसके साथ तमाम दादा, ऋतिक दादा, माँ जैसा हमारे श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा, शांता वैद्य माँ, दीपीराग वैद्य दा, शिवेश दा, हमारा नीलेश श्रीवास्तव दा, विनय दा, राउत दा, सभी जौनपुर से, और मेरा हमारा जर्मनी से, उड़ीसा से, आसाम से, बेंगलोर से, दिल्ली से, बाहर स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, सभी से गुरु भाई माँ हम लोग एक साथ मिलके करते हैं। इस बार सबसे वी मस्ट सेलिब्रेट द इनिशिएशन ऑफ मोर देन 450 स्कॉलर्स। 450 टोटल जो दीक्षा हुआ है, 450 टोटल दीक्षा हुआ है, जिसमें
120 स्कॉलर का दीक्षा हुआ है। जैसा उड़ीसा से मैं किसका नाम बताऊं, हमारा शुद्ध प्रोफेसर पोथालदा, ललित पोथालदा के माध्यम से मोर देन 25 दीक्षा हुआ है हमारा उड़ीसा से। और भी दादा है जैसा विजय केतन पटनायक भी, विजय केतन पटनायक दा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धानबाद से दीक्षा हुआ है। हमारा नीलेश श्रीवास्तव दा के माध्यम से मोर देन 43 दीक्षा हुआ है। प्रीति कुमार गांगुली दा के माध्यम से मोर देन 67 दीक्षा हुआ है। ऐसा बहुत सारे, भुआल विश्वकर्मा दा, पंकु सिंह दा, हमारा दीपी राग वैद्य से माध्यम से मोर देन 10 दीक्षा हुआ है। ऐसा बहुत सारे दीक्षा, मैं काउंट तो अभी जितना याद आया तो पूरा लिस्ट हमारे पास है। हम लोग पूजनीय अरविंद दादा को भेज भी दिए हैं। जैसा मैंने बोला, पूजनीय अरविंद दादा अभी बहुत ही बिजी है वो दीक्षा पत्र के काम में, लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं पूजनीय अरविंद दादा जो बोले थे ये करने के लिए बाय 3 अप्रैल 100 स्कॉलर का दीक्षा होने के लिए पूजनीय अरविंद दादा बोले थे, एंड वी हैव अचीव्ड दैट। We have achieved that by the help of everyone. More than 120 scholar diksha and total 450 diksha within a period of only 2 weeks from all around the world. So I think I am extremely happy and I am delighted to announce that I am a scientist, but I have become extremely emotional. हम लोग दिन रात एक करके, रात 2:30 बजे गौरी शंकर दा फोन करके बोल रहे हैं, दादा मेरे को हम लोग जैसा हमारे मिस्टर क्लार्क मेयर दा राजी हो गए। रात 2:30 बजे फोन करके बोल रहे। मनोज पात्र दा वाज सो एक्साइटेड दैट ही वाज एबल टू कन्विंस मिस्टर जॉन ग्राफ्स। जैसे हमारा रामकिंकर दा ठाकुर दा है, सभी गुरु भाई माँ मिलके इतने सारे ये जो प्रोग्राम, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अरेंज ड्यू टू दिस ऑफलाइन। जो ऑफलाइन सब खुल गए इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है अरेंज करने में, लेकिन सब गुरु भाई माँ मिलके दिन रात मेहनत करके ये जो प्रोग्राम जो है पूजनीय अरविंद दादा को हम लोग बोले तो वी शुड बी वेरी फील प्राउड। एंड उनका जो मैसेज जो 1-2 दिन में आ जाएगा हम आप सभी को व्हाट्सएप करके दे देंगे, नहीं तो वी विल मीट मे बी नेक्स्ट फ्राइडे, वी विल मीट अगेन टू कन्वे हिज मैसेज। नाउ आई रिक्वेस्ट श्रद्धेय ज्योतिन्द्रनाथ मोहंती दा, हमारे बीच श्रद्धेय मनोज पात्र दा भी है, दादा को मैं कुछ बोलने के लिए बताऊंगा, बट फर्स्ट श्रद्धेय ज्योतिन्द्रनाथ मोहंती दा, प्रतिरित्तिक ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन ऑफ सत्संग सेक्रेटरी सत्संग बिहार दिल्ली। जय गुरु श्रद्धेय ज्योतिंदा, आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू। जय गुरु। धन्यवाद जयंत भाई। अभी औपचारिक तौर पर मेरा प्रोग्राम है सबको धन्यवाद करना, लेकिन हमारे आदरणीय जयंत भाई ने सबका नाम ले चुके हैं, इसको दोहराने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। टाइम का पाबंदी है। जो शंखध्वनि, हुलध्वनि, जो प्रार्थना, जो मेडिटेशन, जो भजन कीर्तन, जो पार्टिसिपेट किए हैं डिस्कशन में, डेलिब्रेशंस में, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत देश विदेश से जुड़े हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन से देश विदेश से जुड़े हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये इसमें तो 460 दीक्षा हुआ है और 120 जो स्कॉलर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स इसे सब दीक्षा ले चुके हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इसके पीछे जिनका प्रेरणा है उनका लोटस फीट में प्रणाम करता हूँ। वो हमारे पूजनीय अरविंदा है, अरविंद बाबू है, जिनका प्रेरणा से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। मैं इसमें 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ। जो सब्जेक्ट रखा गया है कि इनएविटेबल, दीक्षा केवल हमारे लाइफ में अनिवार्य है और अविच्छेद्य अंग है हमारे लाइफ में। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने सारे अवतार पुरुष आए, श्री रामचंद्र से लेके परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र तक जितने अवतार पुरुष आए सब मानव शरीर में आए हैं। हमारे शरीर में आते हुए उनको भी दीक्षा लेना पड़ा है। श्री रामचंद्र ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के माध्यम से दीक्षित हुए थे। परम पुरुष श्री लॉर्ड श्री कृष्ण ने उनको घोर, अंगिरस, संदीपनी के माध्यम से दीक्षा लेना पड़ता है। और बुद्धदेव आए मुद्गलन के माध्यम से उनका दीक्षा हुआ है। और आए उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए, जॉन द बैप्टिस्ट को दीक्षा हुआ है। हजरत मोहम्मद आए, गैब्रियल से उनका दीक्षा हुआ है। और आज हमारे महाप्रभु श्री राम चैतन्य देव आचार्य केशव भारती के माध्यम से उनका दीक्षा हुआ है। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस दिखते हैं, आचार्य तोतापुरी के माध्यम से दीक्षा हुए। बहुत सारे दीक्षा लिखे थे, इस्लाम वे लाइफ में भी दीक्षा लिए थे। आचार्य तोतापुरी उनका लास्ट दीक्षा गुरु थे। और परमदास ठाकुर जी को हम देखते हैं, वो
संत मत के जो ऐसे थे परंपरा में जो थे सरकार साहब, उनका निर्देश से श्री ठाकुर जी के जननी मनमोहन देवी उनको दीक्षा दिए थे। लेकिन श्री ठाकुर जी सरकार साहब को औपचारिक तौर पर उनका सदगुरु मानते हैं। और श्री ठाकुर जी अपने माँ के कोख से भी ये नाम जप करते थे, उनके उस समय से उनका दीक्षा हुआ था। अगर ये सब अवतार पुरुष होते हुए भी जब दीक्षा लेते हैं तो हमारी लाइफ में ये इनएविटेबल नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है सबके लिए। और दूसरी बात होता है जो दीक्षा इनएविटेबल क्यों होता है? जैसे हमारे जीने के लिए हमको श्वास प्रश्वास इनएविटेबल है, हमारा खान पान इनएविटेबल है, हमारा रहन सहन इनएविटेबल है, जैसा अस्वस्थ होने पर हमको इलाज करना इनएविटेबल है, जैसा हमारा पहन पहनाव इनएविटेबल है, जैसा हमारा एजुकेशन इनएविटेबल है, जैसा हमारे लिए हमारा कैरियर इनएविटेबल है, उस तरीके से क्या दीक्षा इनएविटेबल है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ होता है? जरूर होता है, क्योंकि दीक्षा हमको सिखाता है किस तरीके से श्वास प्रश्वास लेना, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम सीखते हैं, मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह करना। हमको दीक्षा सिखाता है हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हमारे मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन का अनुकूल हमारा खान पान होना चाहिए। ये दीक्षा से हम सीखते हैं। हमको दीक्षा देता है अस्वस्थ होने पर तुरंत इलाज करना, इसे हम दीक्षा से हम सीखते हैं। जस्ट अस्वस्थ होने पर इमीडिएटली इलाज करना। दीक्षा हमको जो अंतर्दृष्टि देता है, बहिर्दृष्टि देता है। दीक्षा हमको हमारा एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, अर्थोपार्जन किस तरीके से करना चाहिए, हमारा जो जन्मजात संस्कार है उसके हिसाब से हमको एजुकेशन लेना चाहिए, उसके हिसाब से हमको हमारा जिंदगी गुजारना चाहिए। ये सारे हमको अनिवार्य होता है। दीक्षा हमको इंसाइट देता है, अंतर्दृष्टि देता है, जिस वजह से हमको ये सब को हमको पालन करना पड़ता है। इसलिए दीक्षा हमारे लाइफ में इतना अनिवार्य है, दीक्षा हमारे लाइफ में इतना अविच्छेद्य अंग है, हमारा लाइफ का अविच्छेद्य अंग है। लाइफ के बारे में हमारा क्या ज्ञान है, लाइफ के बारे में हम कोई पूछता है तो हमको लाइफ क्या है, हम बोलेंगे स्पैन बिटवीन लाइफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन हमारा जन्म से पहले हमारा लाइफ था, मृत्यु के पश्चात भी हमारा लाइफ रहेगा। जिसको अब जो हमारे अतीत और वर्तमान भविष्य को जानते हैं वही होता है। तो सदगुरु हमारे लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इसीलिए कैरिंग आउट द कमांड्स वी मस्ट विदाउट द लीस्ट शैडो ऑफ डाउट हेजिटेशन इज द ओनली वे टू स्पेशल सक्सेस। तो स्वामी जी की बात है। तो इसीलिए कहने का मतलब है, जो पिता माता के बारे में बोल रहे थे, पिता माता गुरुजन ने श्रद्धा भक्ति जाय रखिस्ना इष्टानु का ना लेकिन प्राण में ना को सब बोलते पिता माता जो होते हैं तो हमारे लाइफ में एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हमको गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। उनका दृष्टिकोण सीमित होता है। उन्होंने हमारे इस लाइफ में हमारे पिता माता है, दूसरे लाइफ में हमारे कौन पिता माता होंगे, कौन का संतान होंगे नहीं जानते हैं। हम किसका पिता होंगे हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जो हमारे परम पिता होते हैं वो हमारे जन्म जन्मांतर पिता होते हैं। इसलिए उनका शरण में आना हमारा इसलिए अनिवार्य है। और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस की छोटी सी बात है, रामकृष्ण परमहंस बच्चे, उनके पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आते थे, रामकृष्ण से बहुत मजा मजा बात बोलते थे। एक बच्चा 2-3 दिन आना बंद कर दिया। रामकृष्ण चिंतित हुए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, क्या तबीयत खराब हो गया, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। 3-4 दिन बाद वो बच्चा फिर वापस आया तो उनको देख के रामकृष्ण बहुत खुश हो गए। बोलता क्या हुआ था, तबीयत खराब था? नहीं, तबीयत ठीक था। मैं क्या प्रॉब्लम, घर में क्या प्रॉब्लम नहीं था जे, तो फिर क्यों नहीं आ रहा था? तो इधर ना मेरे को मेरे पिताजी हर रोज एक गंगा पार होने के लिए जो नाव का किराया वो किराया देते थे, वो बंद कर दिया। तो क्यों जाते हो बुढ़ा ब्राह्मण के पास बैठ के, क्या सुनते हो तुम, तो टाइम को क्यों वहाँ पे गवा देते हो? इसलिए तो नहीं जाना चाहिए, बंद कर दे। मेरे को किराया देना बंद कर, मैं आ नहीं पाया। तो फिर आज कैसा तुम आया ना? आज मैं आया इसीलिए कि मैं आज अब छटपट रहा था मन आपके पास आने के लिए। मैं आज मेरे पिता का जेब कतरा और पॉकेट पर करके पैसा लेके ना आपका किराया देके आपका पास आ गया। खबरदार, माता पिता हर बात तुमको सुनना पड़ेगा, लेकिन एक ही बात तुम माता पिता का नहीं सुनना, क्योंकि माता पिता मेरे बात तुम सुनना। अगर मेरे पास आने से माता पिता रोकेंगे तुम उसको नहीं सुनना। तो मेरे पास आने से तुम्हारा मंगल तो होता ही है, तुम्हारे माता पिता भी मंगल होता है, तुम्हारा 14 पुरुष 14 पीढ़ियों का मंगल होता है। तो इष्ट कौन होते हैं? माता पिता गुरुजन है, श्रद्धा भक्ति जाय कृष्णा इष्टानुक कहा। लेकिन तो हमने प्रहलाद लाइफ में क्या देखे थे, ये सब डिटेल्स बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे को जो मौका दिया है हमारे जयंत भाई ने, इसलिए मैं उनके प्रति मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा प्रोग्राम यहाँ ही सबको, फिर जो इस बात को सुनते हैं, देश विदेश से सब लोग सुनते हैं, सबको धन्यवाद करता हूँ। और जो इसमें पार्टिसिपेंट है सबका धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु, वंदे कुसुम।
जय गुरु दादा, जय गुरु। आप मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। मैं जैसा पहले दिन जब आपसे मैं बात कर रहा था, मैं ऐसे श्रद्धा से डर रहा था, तो आई हैव रियली हाई रिस्पेक्ट, हाई रिगार्ड्स फॉर यू। बहुत ही सुंदर दादा, आज आप हमारे बीच उपस्थित है एंड यू हैव we are really blessed to hear your words. जय गुरु दादा। आप और आपके दिल्ली मंदिर में सभी के लिए मैं ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। हमारे बीच मनोज पात्रोदा उपस्थित है। बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा, मैं राजर्षि दा का नाम लेना तो भूल ही गया। हमारा यूके से श्रद्धेय राजर्षि रॉय दा और टुम्पा घोष माँ, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कैसे कैसे ये प्रोग्राम को हम लोग अरेंज करें, तो टुम्पा घोष माँ अगर आप उपस्थित है तो हम लोग आपके पास से भी सुनेंगे। सो आई थैंक बोथ राजर्षि रॉय एंड टुम्पा घोष माँ for helping us with designing the program. मनोज पात्रोदा, आप कुछ बोलिए, उसके बाद मैं श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा को माइक हैंड ओवर कर दूंगा। जय गुरु। मनोज दा, are you here? श्रद्धेय मनोज पात्रोदा। Okay, if he is unavailable, Shraddha Priti Kumar Ganguly, please. Jai Guru. जय गुरु जयंत दा। जय गुरु। मैं आप सबको परम दयाल के श्री रातुल चरणों में मंगल कामना करते हुए प्रभु को प्रणाम निवेदन करता हूं। मेरे आचार्य देव के रातुल चरणों में भी मैं अपना भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूं। कोई काम जब हम लोग करते हैं, अभी आज का जो विषय वस्तु था, अगर उससे हम दूसरे नजरिए से इसको जोड़े कि दीक्षा क्यों हमारे जीवन में इतना महत्व रखता है। ठाकुर जी की एक वाणी है, दीक्षा लाती दक्षता जानो, कृति दीप्त में कराती स्नान। आज प्रभु को केंद्र करके उनके चेतन प्रतीक का आशीर्वाद लेकर पूजनीय अरविंद दादा से आशीर्वाद और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के एक प्रयास में ये विश्व भातृत्व का जो एक रूप हम लोगों ने आज देखा, अगर हम लोग दीक्षित नहीं होते तो हम आज यहाँ उपस्थित शायद नहीं हो पाते। हमारे जीवन से ये सुंदर सा एक मुहूर्त चला जाता। मैं प्रत्येक को आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग हर महीने में पहली रविवार को इस प्रोग्राम को करते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन से ऑफलाइन भी हो गया है। हम लोग अपने कमेटी में चर्चा परिचर्चा करेंगे इसे कैसे आप लोगों तक पहुंचा पाए। मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। मेरे ख्याल से मनोज दा हमारे बीच अब आ चुके हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, मनोज दा अगर आप हैं तो दो शब्द आप बोलेंगे। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं। हेलो। हाँ मनोज दा, वी कैन हियर यू। मनोज दा, जय गुरु। बाकी लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। मैं मनोज दा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो। यस मनोज दा। Acha, Jai Guru, sorry, my audio got disconnected a little. I got a sudden call from
someone else important, and Zoom is not able to share speaker and microphone with other video conference. Okay, so Jai Guru, I think like this was a very great session. I missed some part of it. I'm sorry for that. About my friend John Grubbs, who I'm very happy was able to join satsang. Is John still around? I don't know. Is John still around? So John and I work together in the cloud learning systems for हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलेंगे। अच्छा, तो ये जो आज हमारे जो बंधु आए थे मित्र, इनके साथ मुझे 2 साल तक काम करने का मौका मिला। एक ही कंपनी में हम लोग एक बड़े प्रोडक्ट पे काम किए और इस प्रोडक्ट पे उनका जो ज्ञान, उनका जो सोच है, मुझे काफी अच्छा लगा। पर जैसे होता है हर कंपनी में बीच-बीच में असुविधाएं, बाधाएं आती है, तो हमारे कंपनी ने इस बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नए लीडर्स आए थे बाहर से। उन्होंने 1 साल बोला कि इसमें हम लोग और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और बजट को संकुचित करके पहले आधा और फिर 1/10वां भाग कर दिया। 1/10वां भाग बनाने के बाद उनके जैसे सीनियर, मेरे जैसे सीनियर बंदे उसमें और रह नहीं सकेंगे उस प्रोडक्ट में। तो उन दिनों में अचानक से ये ऐसा हुआ और उनका पारिवारिक जीवन में उसका भाई और उसके माताजी दोनों को कैंसर से पीड़ित है ये पता चला। तो अपने माता को, यहाँ पे तो माता-पिता जनरली दूर रहते हैं, पर ये थोड़ा हम लोगों से प्रभावित भी था। बोला कि नहीं, मैं ऐसे स्थिति में अपनी माँ को अपने पास में रख के ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो उसने एक नया घर लिया, अपनी माता को लेके आया अपने स्टेट से, ओवर वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट, अब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, उसके भाई को लेकर आया साउथ से, दोनों को एक घर में लेकर रखा और माता के सेवा में लेकर के ट्रीटमेंट किया। देखो यहाँ पर अमेरिका में कैसे रिलेशनशिप रहते हैं। उसकी जो पत्नी है उस समय मदद करने के बजाय वो थोड़ा नाखुश हो गई कि तुम तो ज्यादा समय अपने माँ और अपने भाई के साथ रह रहे हो, हम लोगों का क्या देखभाल करोगे। और इसको नहीं बता करके किसी लॉयर के साथ बातचीत करके इसको डाइवोर्स का नोटिस भी भेज दिया। तो ये सभी उलझन में जब वो ऑफिस में आता था, हम बातें वगैरह करते थे एंड ऑल इसमें, तो उसको अरे इतना असुविधा हुआ नौकरी का और जैसे चैलेंजेस में, बोला घर में हर किसी का होता है, और तुम हमेशा हंसते हंसते रहते हो, हमेशा हंसमुख रहते हो, ये क्या है। तो मैं उसको थोड़ा सूत्र लेकर बोला कि इतना सुराग जो है हमारे ठाकुर जी है, एक मेरे जीवन में जीवंत आदर्श है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल कोच एंड ऑल ऐसा बोलकर जब जयंत दा ने मेरे को बोला, अब किसी को बोला तो दिमाग में तो कंपनी छोड़ दिए चले गए, ये वेंट टू अनदर कंपनी एंड ऑल दैट। अभी कल मैं उनको, अच्छा जो जयंत दा के बोलने के बाद मैं पहले एक दूसरे दोस्त को बोला जो थोड़ा आध्यात्म के ऊपर होल्ड भी रखता है, मेरा अच्छा बंधु है और कभी भी बुलाने से बोल सकता है। वो बोला, मेरे को लेट बोला, मैं स्कीइंग ट्रिप में जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा। फिर मेरे को जब जयंत दा 12 बोले आप किसी को बोलिए, बोलेगा तो मुझे इसका नाम दिमाग में, इसको फोन किया तो अपना बहुत सारा राम कहानी बताया, बोला कि कितना अच्छा हुआ है वो हुआ, बट थिंग्स हैव बिकम वेरी गुड। के माताजी का तो स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक था, वो चली गई, लेकिन शी लेफ्ट वेरी पीसफुली। और भाई ठीक हो गया है, मतलब ऐसा बोल के उसका बात ही सब सुना, मैं बहुत ही खुश है बंदा। बोला नौकरी भी अच्छी है, घर भी मेरे को देना नहीं पड़ा, वो केस में जज ने मुझको फेवर किया और वगैरह वगैरह, मतलब बहुत उसको बहुत खुश था बंदा। तो मैं उसको बोला अगर थोड़ा ज्वाइन करके बोल पाओगे गुरु जी का बहुत, अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत खुश है। हमारा अप्रैल 30 तारीख को यहाँ पर उत्सव है, बहुत लोग आएंगे, वो भी आएगा, ही विल कम विथ हिज फैमिली। बंदा बोल रहा है कि आएगा साथ में और देखेंगे। तो लगा था इसी, मेरे ख्याल से ये तो जयंत दा का ठाकुर जी के प्रति भक्ति है, कहाँ पे उनको भाव का उद्बुद्ध हुआ उनके मन में, उन्होंने मुझे बार बार बोला, तो मैं इसको फोन करके बुला पाया। और मुझे लगता है आगामी दिनों में ये जॉन ग्रब्स आएगा, ये बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत अच्छा स्पीकर है। आज तो अचानक से क्राउड देख करके, इंडियन क्राउड, और ये शायद उनको थोड़ा, ये फिर सुबह सुबह का भोर 7 बजे मैंने उसको बोला उठ करके ज्वाइन करने के लिए। संडे मॉर्निंग जनरली लेजी मॉर्निंग होता है लोगों के लिए, बट एग्रीड, जब इधर आएगा तो थोड़ा बातचीत और करेंगे। ये बहुत अच्छा स्पीकर है, ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में उसका अपना सब्जेक्ट में बहुत बोलता है। ये ठाकुर जी का दया से। चलो थैंक यू दादा। मनोज दा, आपने अपनी बात को रखा, हम लोग के साथ बने रहें। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक प्राप्ति है और मैं आपके मंगल प्रार्थना करते हुए, आई कैन सी वी हैव विथ अस देवोनीता घोष माँ। अगर इफ यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड 2 words प्लीज। I'll make you co-host. Yeah, please.
जय गुरु दादा, जय गुरु सभी को। मेरे यहाँ पे चर्च में भी प्रेयर हो रहा है एक साथ, शायद वो साउंड भी आ रहा है आपके वहाँ पे। नो प्रॉब्लम, इफ यू कैन प्लीज गो अहेड। तो आज हम लोग यूरोप सत्संग में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि अबाउट ईगो, एंड यहाँ भी वही मैंने बहुत आप सभी गुरुजनों से बहुत सुना कि कैसे अगर और जैसे हम लोग सब रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, अपने अपनी फील्ड में हम लोग अपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है एज एन एक्सपर्ट। सो सत्यानुसरण से आज जैसे हम लोगों ने बोला कि ठाकुर ने बोला है कि there is no other passion creates such hindrance to knowledge as does conceit of knowledge. So ये जो knowledge knowledge in your field, being an expert is one thing, but जब उस expert like being an expert and always you are being said to be an expert, उसका हम लोग एक प्राइड फील करना शुरू करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग वो अपने आप को शायद somehow एक बाउंड्री के अंदर ले आते हैं। और शायद ये हम एज अ साइंटिस्ट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, ये हमेशा ध्यान में रखना कि पैशन फॉर नॉलेज तभी बढ़ सकता है व्हेन आई गेट आउट ऑफ दिस प्राइड एंड make myself available to the learning process. So ठाकुर जी ने ये हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है या मुझे जो रास्ता दिखाया है, तो यही बोल के मैं आज आप लोगों से विनती रखती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। मैं भाषाओं के से कोई पुल बांधना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधी तौर से आना चाहूंगा क्योंकि इतने लोग अभी भी हमारे साथ हैं, समय हाथ से निकल जाएगा। मैं एक एक से सुनना, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो हमारे अंदर में भी वो कुछ एक्वायर हम लोग कर पाएंगे। हमारे भी डॉक्टर सुश्री संगीता पुहान माँ है। माँ, इफ यू कैन से समथिंग एंड फॉलोइंग यू टुम्पा घोष माँ, वो भी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा आपके बाद कुछ बोले। पहले डॉक्टर सुश्री संगीता पुहान माँ। उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम लोग आते हैं चुम्पा घोष माँ, आप हैं क्या? चुम्पा घोष माँ। हाँ, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु माँ। जय गुरु। नहीं, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हमारी हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करेंगे। तो येस्टरडे कल ही हम जयतुदा से बात हुआ कि ये इधर पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आज का जो पैनल डिस्कशन, सारे गाना, सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा। पैनल डिस्कशंस वर सो रेलेवेंट विद ऑल द आंसर्स दैट वी गॉट। तो हम लोग का इधर में क्या होता है कि आजकल ये पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ बच्चे लोगों का तो बहुत सारे इफेक्ट किया है। तो स्कूल में हम लोग महीना में एक दिन ना मेंटल हेल्थ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 वीक्स बैक हम लोग का एक मेडिटेशन सेशन हो रहा था टीचर्स लोगों का। तो उसके बाद लास्टली हम लोग का बताए कि हाथ जोड़ के सभी वाइट थे उधर में कि गुड डीड्स, गुड थॉट्स और गुड वर्ड्स, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बोलने के लिए। तो तभी हमको लग रहा था, आज हम जो पैनल डिस्कशन में सुन रहा था, तो कैसे हम लोग करेंगे वो जो गुड डीड्स, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स। तो आज का वो डिस्कशन सुनते सुनते जो ठाकुर जी का अगर एक लिविंग आइडियल का कितना जरूरत है, और इधर में तो हम लोग देखते हैं कि प्राइड, ईगो, क्योंकि इधर जो लोग आते हैं तो सब कोई का तो एक एजुकेशन, कुछ सक्सेस लाइफ में मिला है बोल के इधर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग का वो जो हमारे पहले माँ जो बताए ना, जो ईगो, वो प्राइड हम लोग को बहुत ज्यादा रोक देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो पैनल डिस्कशन का जो हमको भी समझ में ना आया कि जो वाई दैट इनिशिएशन और कैसे हम लोग का अंदर में जो चेंज लाते हैं,
वो तो एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। तो यही बोल के हम खत्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। मैं श्रद्धेय राम किंकर ठाकुरदा, राम ठाकुरदा हमारे बीच है। आपने शुरू किया था आज का ये सुंदर सा एक दिन। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज कुछ आप बोले। जय गुरु दादा। अभी देखिए जय गुरु। 3 घंटा हो गया है जब शुरू हुआ था, अभी तक बैठे हुए जाने का मन नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा क्या बोलूं, अभी तक लगे हुए हैं हम लोग, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। हेलो, इधर निकलो। ओके। बट बहुत ही मतलब जिस तरह से सब किया, सब लोगों ने किया है, कंट्रीब्यूट किया है, लोगों ने बोला है, इतना रिलेवेंट है। हाँ हाँ जय। और हमको लगता है कि हम इस तरह का करते रहें और प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, इन स्पेशली वेस्टर्न बाहर के में, ये सब जो चैलेंज जो है हम लोग जीवन का जो चैलेंज है वो बहुत रियलिटी, उसका रियलिटी है। हम कुछ दिन पहले एक 2 साल हुआ पैंडेमिक के पहले, एक इसमें गए थे, यूरोप में गए थे एक जगह पे, 15-20 लोग थे, नेटिव वाइट यूरोपियन, सबके साथ हुआ था। उसमें से 4-5 लोगों ने दीक्षा भी लिया था। बट मैं एक चीज देखा था कि ऑब्जर्व किया था सबसे बात करने में, कि लोग अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। हाँ, जो रिचनेस है वो सब, तो इस चीज को वापस लाना, तो मैं वही, मुझे बहुत अच्छा लगा। दादा मुझे थोड़ा निकलना होगा, हमारा प्रार्थना है, मैं फिर ज्वाइन करूंगा प्रार्थना खत्म करके, ठीक है। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम फुलफिलिंग था हमारा पूरा एक्सपीरियंस आज का। एक एक जो स्पीकर थे, सबका बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा, टू द पॉइंट और रेलिवेंट। जय गुरु। थैंक यू रामदा। मैं आपको जब भी सुनता हूँ बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु दादा। रामदा, आपका कमरा भी हमें बहुत पसंद आता है, जब भी आपको देखता हूँ बैकग्राउंड। ये दादा हमारा ठाकुर का घर है। जी जी। अभी हम लोग प्रार्थना में आए हैं। 2 मिनट में हमारा प्रार्थना शुरू होगा यूरोप का। आई थिंक ठीक है, आप प्लीज इसमें बिजी होंगे अभी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कौशिक कुमार मंडल हम लोग के बीच है। डॉक्टर कौशिक, आप अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर कौशिक। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आप लोग का जो प्रोग्राम है वो तो वहाँ पे जरूर प्रेजेंट रहते ही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और सारे वर्ल्ड के जो तो गुरु भाई है, हम लोगों का गुरु माँ है, सब तो यहाँ पे रहते हैं। उन लोगों को एक्सपीरियंस ठाकुर को जी को लेकर वो लोग बाहर में कैसे चलते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, वो लोग अप्लाई भी करते हैं। और जो आज जो डिस्कस हुआ वो तो बहुत अच्छा था। तो और जो दीक्षा के बारे में बोला, वो तो दीक्षा जो हुआ वो तो वी आर वेरी हैप्पी। और दादा के पास से जो आशीर्वाद आएगा वो तो हम लोग सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा। जय गुरु, जय गुरुदेव। मैं तरुण विश्वास, डॉक्टर तरुण विश्वास, इफ यू कैन हियर मी। तरुण दा, आप एक बहुत बड़े रोल अदा करते हैं हम लोग के ये सारे प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। आइए तरुण दा से कुछ पूछते हैं। जी तरुण दा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। और क्या बोले, जयंत दा हंस रहे हैं। तो अंडर ऑल एक्टिव गाइडेंस ऑफ जयंत दा, तो हम लोग हमेशा ये बातचीत करते हैं। जैसे जयंत दा, हम लोग के आशीर्वाद मिलने के बाद हम लोग सभी लोग अपना अपना लेवल में बहुत प्रयास किया है, और प्रयास का नतीजा आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है
कि ये जो ठाकुर जी के दया से जो हम लोगों को जो प्रेरणा हम लोगों को मिला, ये प्रेरणा हम लोग नहीं खोएंगे। इस प्रेरणा को हम लोग जारी रखेंगे। ये जो इतना शॉर्ट टाइम में हम लोग इतने लोगों के पास गया, पहुंचा, ठाकुर जी के चरण में लोगों को निवेदन किया, उनका मंगल का कारण बना। हम लोग इसमें और ज्यादा एक्टिव होंगे, यही प्रार्थना, यही उम्मीद मैं रखता हूँ। सबका इधर में जितने सारे लोग अभी भी है, सबका मंगलमय इष्टमय जीवन में ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। मैं दादा जय गुरु। मैं एक छोटा सा बात मैं तब बताना भूल गया। तरुणदा के माध्यम से और रांची तरुणदा और पांडा के माध्यम से ऑलमोस्ट 12 दीक्षा हुआ है रांची से। आई थिंक एम आई करेक्ट तरुण?